So, hello everyone. Today we are in Dukaan again. We will meet the CTO, the brain around the tech at Dukaan. We will get to know the job loss due to AI and what they are doing in AI right now. And the biggest customer in B2B are in e-commerce in India, and how are they leading the AI innovation? Hi Subhash, can you please introduce us? Again, Subhash, very nice to see you again here. I was very happy with the podcast that we did last time. Lot of people recognize me from PI app when I sing in USA. I heard the podcast we had. That was fantastic podcast. I try to make sure that every single person that I am trying to lay off with get a better job in the market. And ये जो प्रिंसिपल है हायर फास्ट फायर फास्ट सुनने में आसान लगता है. हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू इम्प्लीमेंट इन इंडिया? कंपनी में प्रॉफिटेबली चलानी है, सिंपल सा काम है, सस्ते में प्रोडक्ट बनाऊंगा. मैं इंटर्न्स हायर करता हूँ, काम करते हैं बच्चे लोग हैं, अच्छे से काम करते हैं, उनको मैं जम के सिखाता हूँ, उनके साथ लिटरली बैठ के काम करता हूँ. यूएस की तरह क्या आप भी अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स एंड एआई इंजीनियर्स को ज्यादा पे करते हो एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? मैं अपने इंजीनियर्स को 25,000 रुपये सैलरी देता हूँ. कितने? 25,000 रुपये. पीपल पे अस lakhs of rupees a month to run this software. Couple of deals we have will be crores in a month. First question people are going to ask you, GPT हाँ भाई है तो क्या हो गया? तो GPT डायरेक्टली यूज कर लेना, क्यों नहीं कर रहा? So this is audio model. Which model it uses? Oh, it's your custom model, right? Help you. Hey, can you help me with my order? Today. Sure, I can help with that. Could you please provide me with your order number so I can check the details for you? My order number is 103. धन्यवाद. कृपया प्रतीक्षा करें जबकि मैं आपके ऑर्डर की स्थिति की जांच करता हूं. आपके ऑर्डर के संबंध में नवीनतम स्थिति यह है. आपका ऑर्डर पुणे वेयर हाउस में भारी बारिश के कारण ट्रांजिट में फंसा हुआ. नए अनुमानित वितरण तिथि 2024-06-09. क्या मैं आपकी और किसी तरह से सहायता कर सकता हूँ? शेयर के शवाल है. ये ऑर्डर मेरे को नहीं चाहिए, तो कैन यू कैंसिल दिस ऑर्डर प्लीज? मुझे खेद है लेकिन वर्तमान समय में हम एक बार शिफ्ट हो चुके ऑर्डर को रद्द नहीं कर सकते. आप ऑर्डर प्राप्त होने के बाद उसे वापस करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. क्या मैं आपकी किसी और चीज़ में मदद कर सकता हूँ? मेरे को चाय बनाना सिखाएगा क्या? बिल्कुल, यहाँ पर सरल तरीके से चाय बनाने की विधि है. सावरी ऑन द वाइट वन चुन माय. सुनना चाय नहीं पीना, चाय नहीं पीना. मेरे को एक फ्लाइट बुक करना था, फ्लाइट बुक कराएगा क्या? कर सकते हैं. क्या मैं आपकी किसी अन्य चीज़ में मदद कर सकता हूँ? फ्लाइट बुक करा के दे मेरे को. मुझे खेद है लेकिन मैं आपके लिए रेडर फ्लाइट हुई रनवे अस्फर्ड हूँ. आप किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट जैसे मेक माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप या डायरेक्टली एयरलाइंस की वेबसाइट से अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं. क्या मैं आपकी किसी और चीज़ में मदद कर सकता हूँ? नहीं, दैट्स ऑल. Amazing. इंग्लिश का थैंक यू. बहुत सही है. I am Piyush. I am a backend engineer at Dukaan, and right now we are working on the botnet V2 version. And yeah, we are like integrating the voice and all right now. तो आप कौन सा LLM यूज करके या कौन सा विस्पर यूज कर रहे हो या? Now, right now we are like trying different modules. Like we are trying different LLMs which are paid, and we are also trying to local host and create our own LLMs. So we are just comparing all the models which are available right now. Okay. Yeah. And you're which year right now? College? I'm in college right now, and I have just completed my 3rd year. I'll be soon in my 4th year. Oh, nice. And what's the best part of working here for Oh you? my god, like it's literally like I'm able to get like so much access to things, like getting my own servers, having access to GPUs. Like I've been working on such powerful machines which no college student might have access to. I'm from deploying the code to researching about the LLMs to getting so much access to all the paid things. That is like wonderful. We have some first year students at Dukaan. So आप introduce करना, and what are you all working on? Hi, I'm Archisman. I'm currently working on the ERD of voice bot of Bot9. Up. I'm Sudarshan. I'm currently working on the UI of the voice. Very nice. And up. I'm Krishna. I'm working on voice agent UI. Oh, up. And I'm Sarashi Sarkar, and we are the voice team, and we are currently working on the whole voice agents platform of Bot9. Oh, nice. And how did you get this opportunity right from first year? So we are currently studying skill of technology, and so this opportunity came from college itself. So one day at college, Subhash sir came and gave us an assignment, a simple assignment, which was not so simple actually. And so we 21 of us cleared that round, and Subhash sir directly called us for an internship. Very nice. And what is the most challenging part of working as a prompt engineer and working in voice models and building agents? The most challenging part is
you have to understand the code, right? So that's the most challenging part. Basically here we can use code and understand all the code, and then you have to figure out things, because AI cannot generate totally good code for you. You have to figure out yourself. And how about you? Anyone else? What most challenging? I think the most challenging part is understanding the whole workflow, how things go in production, and all the things. We at college, we do projects, we do custom projects, we do many other things, but the point is that we write code in a way that is not good for the organizations. Organizations work differently. They focus more on scalability. They write production level code, and they use many other things. So understanding that whole workflow is very important, and I think that is what is the most challenging part here, and that is what we are interested here to learn, actually. Got it. What is your favorite and most interesting LLM or model that you have used? Llama 3, Grok? So currently I have used Llama also and OpenAI also. So I think for me OpenAI was very useful, and OpenAI integration is very fast, and it also has function calling features, and their docs and cookbooks are also very helpful. So I think OpenAI works best for me. Nice. Anyone else? I think Claude works best for me, because Claude is better on front ends and coding, so it helps me quite a lot using it. So what were the misconceptions you had about AI and building in agents which got busted after joining? ऐसा लगता था कि मैजिकल चीजें करते हो. I thought that agents are really something that, we like, how does that work? But everything's break down to very simple things. Like agents is nothing but a set of tools which works in an organized manner. So that was like that busted a myth that you can go and learn everything from basic. Like everything boils down to some fundamental that you need to know. First part is that, plus like especially working at Dukaan is a very fast-paced startup, so we are learning to how to deliver very fast, how to make things work. So that have been, because we have never got exposure to this environment, so this is a interesting part. Anyone else? The thing is, because we are working in the cutting edge technology, the environment around it, or like the resources you need to learn such thing is not very good at times. So learning this at this pace and keeping up with it, this is difficult. सबसे पहले तो सुभाष, thank you for being the inspiration regarding the AI you are leading in India. So सबसे पहले we want to know how you have evolved. Last time जब ने interview की थी, you were $100 million evaluation company. What has changed? Have you become profitable now, or evaluation has increased? Absolutely. So last year, I think when you come, almost a year, right? So last year when you came, right, we were very in growth mode. And when you say growth mode, that is basically get customers at all cost, no matter what is happening. Get customers, grow revenue, grow your valuation. That was the mode. But we realized that this is not sustainable for long term. We cannot keep burning money and expect to have do what we want to do, what we love, and still make a company that is sustainable for the long term. You always have to depend on money from the VCs. You also have to depend on money from external sources or whatever. And that is always keeping you in a lot of pressure. So we saw, yes, sustainable nahi hai. So what we can do, let's look at our cost centers and let's look at our revenue numbers and see what we can do to actually increase this. And that's when we started to double down on all the cost centers that we have. Technology was one of the biggest costs that we had, and the people that was again biggest cost. Last time when you came, right, the entire 5th floor was full, right? We were almost 300 people that time. So we started to look at कि कहाँ पे हम optimize कर सकते हैं. So like I said, technology was a major cost for us. Almost we were paying $90,000 a month only for infrastructure, and that has just grown on because when we had engineers, right, we were like when we started, we were a very small company, 4-5 लोग थे. बट धीरे धीरे लोग ऐड होने लगे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से वर्चुअल मशीन्स बनाने लगे, डेटाबेस बनाने लगे. देन वंस यू हैव लॉट ऑफ मनी इन बैंक, यू डोंट केयर अबाउट दोस स्मॉल थिंग्स, एंड दैट स्मॉल थिंग्स स्टार्ट टू पाइल अप. And at one day it's just too large expenses that you have. Then you are like, isko band karu, isko band na karu. And then you are like, even if I close all of this down, right, you still need this amount of CPU, this amount of memory, this amount of this, all those kind of stuff. So what we can do? And then we saw that we are spending a lot of money in cloud computing. That is your AWS, your whatever cloud that we are using that time, right? So I said, okay, isko kya kar sakte hain? I had a background in
managing servers myself. Like I said, right, I started my company managing servers for a company, right? So, and I was personally handling more than 15 lakh servers back in 2013-14. So I said, okay, if I have that expertise, can I move everything I have in cloud to our own service? Bare metal, basically. Bare metal service, right? And we used to call them dedicated servers. Now we call them bare metal servers because bare metal sounds more cooler. At the end of the day, it's the same thing. Just a server sitting in a rack in a data center. In cloud also, it's the same thing, right? Server sitting in a rack in a data center. So, usko kya kar sakte hain? And then we said, okay, let's use the expertise that we have and move everything off cloud. Because computing, as I know, and I have a background in that, right? So I know computing is very margin heavy company where you have close to 80-85% margin on whatever hardware you are selling. So we said, okay, let's do that. And we did it, and the cost came to around between, I think, right now we are paying close to $1,500 a month for the exact same amount of CPUs that we have, actually more CPUs that we have, more RAM we have, more storage that we have, and systems are more reliable than that we have on the cloud platforms. Plus, when you run everything on bare metal, right, there is no virtualization layer of compute, no virtualization layer of hard drives as well. And your databases mostly are disk heavy, IO heavy. Whenever you run a query, the database has to seek the data from the disk, which is a cloud disk. It is spread on a network, which is going to be a lot slower. Versus if you have the disk directly attached to the server, that is going to be a lot faster. NVMe disks these days are very fast. So now we get better performance. I think a lot better performance than what we had on cloud. A lot more control and a lot more reliability. At the same time, a lot less cost. Almost 10x cost. 60x. I don't know the math, but you figure out, right? So $90,000 to $1,500, whatever is 60x, bhai, 15 times 6, so it's up 60x save kar pa rahe ho per month. It's a big number. And the second lever that we had was the people, right? So we said people mein kahan pe save kar sakte hain. So in the people side, we saw mostly support and sales was a lot of pre-sales was a lot of resource centers jahan pe we were paying a lot of money for tasks which was not human tasks. For example, if someone is asking कि मेरा payment मैंने payment किया था store पे but पैसा कट गया but account activate नहीं हुआ, उसके लिए customer support doesn't do anything. All you have to do is look up a dashboard on Razorpay, tell कि भैया आपका पैसा UPI का failure है and 7 दिन में अपना refund हो जाएगा. This is not human intelligence. इसके लिए उसको इंटेलिजेंस लगने की जरूरत नहीं है, उसको इंटेलिजेंस कहीं और लगनी चाहिए जहाँ पे अच्छी जगह पे लगाएगा. तो इससे इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? When we started to dig deeper in the support team, we saw कि सबके सब तो लिटरली रोबोट ही बने बैठे हुए हैं. वो बंदा अपना नाम क्या बोलेगा, that too is predefined by someone जो उसका सीनियर लीडर है, मैनेजर है, whatever. तो हमने बोला ये काम तो अगर रोबोट ही बनाना है तो रोबोट एक्चुअल डाल देते ना. This is the time where AI was picking up. GPT 3.5 I think came that time. So we built a bot and we used the bot in front of the customer support, and the bot was able to respond a lot better to the customers than our humans. The bot was able to connect with customers a lot better than humans, because humans have a set SOP, bot doesn't have SOP. Bot only knows ये problem आई, ये सारे tools है मेरे पास, इसको solve करना है, मैं करके दे दूंगा. Humans have a SOP कि इसको नाम कैसे बोलना है, ये कैसे बोलना है, वो कैसे बोलना है. So these are the two levers that we did to just reduce our cost at all time. And with that, we laid off a lot of people in support. Even in technology, we saw that there were areas that we could optimize on. So in technology team, we optimized a little bit on that. And with that, out of 300 people we were, now we are probably 10% of that. So 30? Mostly, yeah. So, wow. So, इसके कारण काफी नेगेटिव. आउट ऑफ 30 इसमें से 20 इंटर्न है, 20 नहीं एक्चुअली 25 इंटर्न है मेरे पास. सो एक्चुअल कोर टीम में 5 लोग हैं, बाकी 20-25 इंटर्न है मेरे पास. तो 300 से सीधा 30, ऑलमोस्ट 10% ऑफ ओरिजिनल वर्कफोर्स. यस, एंड देयर इज जीरो इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू, zero impact on service quality, zero impact on downtimes. We have no major downtime since then. We were not the only company who were looking to optimize cost, because in this market, and the market has changed. If you compare from 3 years to now, the market actually changed. The funding that used to come that easy is now very difficult for other people to get. So everyone is trying to optimize cost and focus profitability, which was not the case that 2 years, 3 years back. So everyone is trying to optimize cost one way or another. So a lot of people reached out to us, we also want to do it. More than India, we saw people from outside India, because this news was picked up by pretty much all major outlets anyway, that Dukaan is the first company to lay off people because of AI, and that was a huge news. We got 27,000 small customers, small business owners across the world who asked and showed interest, we want to use your AI. And they signed up on the platform for beta request as well. 2 years back when you came, right, we were on a growth mode. Now we figured out our optimization. Since last year November, we are profitable at the company level also. Even this building is profitable. The rent that we get versus what we pay, right? So even that building itself where we're sitting is profitable now. We have subleased 2 of the floors, top floors of the building, and we get more rent than we have to pay for the office. So even on the office level, we are profitable. So incredible. And
इट्स सैड कि इंडिया में नेगेटिव पीआर मिलती है इफ यू ले ऑफ पीपल. आपको बताया जाता है कि शायद आपकी कंपनी को कुछ हो गया है, यू आर नॉट ग्रोइंग, समथिंग इज रॉन्ग विद द कंपनी. बट ऑन द अदर हैंड जब यूएस में सिलिकॉन वैली में ले ऑफ्स होते हैं, पीपल फील प्राउड दैट इलॉन मस्क विद जस्ट 20% ऑफ द वर्कफोर्स, 8,000 से 2,000 वर्किंग द सेम लेवल. ट्विटर में 8,000 से 2,000 एम्प्लॉइज गए, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. सेम विद शॉपिफाई. तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, पर इंडिया में ज्यादा डिफर्मेशन मिलती है, ज्यादा आपको क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप जॉब्स कम कर रहे हो, एआई जॉब्स खा रहा है. सो हाउ डू यू टेक दैट हेट? So, see, as a human beings, it comes to you and it impacts you. And more than the people's hate, right? As a person, it impacts you. So I remember when I was when I did the first layoff, I was literally sitting on the staircase of my office, I think around 1 a.m. in the night, and I was crying. Because these are the people who I personally hired. Every single person I hired and told them that I will make you, help you grow in your career, I will help you reach this level. All those things I promised them. And lot of promises I fulfilled. But even then, these people have worked with you for a year, 2 years, right? And you have very, very personal connection with them. For whatever reason, if you have to tell them that, bro, you have to leave, that's a very emotional decision. At least we are not as evolved as people in Silicon Valley, even as a founders. Even we come with a lot of emotional baggage from the way we are raised or whatever, right? So even for me personally, more than the hate from the others, right? It was the internal thing that was causing me more pain than it was supposed to be. Even the second round of layoff happened, very sad. Almost weeks and weeks, you will feel the pain. You don't feel like coming to office. You don't feel like doing any work. But then you have to accept the reality that, okay, this is for the goodness of everyone involved. And the way I look at it, right, the creation is more important than the creators. If I tried to be a hero and tried to save everyone, this company would not exist right now. And everything that they work for that, right? So I know everyone who work with me, right? They work day and night. I also work day and night. If in the emotion of that I will not lay off people no matter what happens, we will have to close the company because the burn that we had and the runway that we have left is simply not sustainable. 6 months, 8 months, 1 year, maximum 1 year. If there is no external funding and the environment was not that great that you're not sure how much time the funding will take anyway. And even people who are going to fund you are look at your numbers as profitable, how much profitable you have versus how much growth you have. That I don't control that market. I don't control the external environment. That is not my control. All I can do is I can fight myself. And if I try to be a hero and not lay off anyone, everyone will have to lose their job one way or another anyway. And the things that they created, that will also cease to exist. That time saving the creation was more important, and that's where I look at it, right, that it's okay. And then what I did was with the connections that I have, right, I tried to make sure that every single person that I am trying to lay off with get a better job in the market, and I tried to do that. I posted on Twitter. I was the first one to even go and ask on Twitter that, okay, I have laid off this many people, and if someone is hiring, please reach out to me. Lot of good people from all big companies reached out to me that, okay, I'm hiring. People don't want to announce layoffs because this is very, like you said, because of the hate. I know if I announce layoff, I will get a lot of hate. But for me, making sure my employees are placed at good companies are more important than the hate itself. And right after my tweet, people started to write about it. The news media also started to write about it. That's okay. For me, getting the people placed was more important, so I did that. So I would say people should also look at it. Your question is right, that why we should have the hate, right? I don't know. We are raised like that. We should get involved and appreciate businesses. If someone is trying to be profitable, it's good for everyone. It's good for the economy. It's good for the consumers. It's good for everyone. Nobody is going to pay from their pocket, may be loss and do business, right? The people who are hating, they will not do it themselves. बट इंडिया है, लोग पास ट्विटर है, अंबानी ने इंटरनेट दे रखा है, तो कुछ तो बोलेंगे, क्या ही कर सकते हैं. दे डोंट नो हाउ इट इम्पैक्ट्स द पीपल हु आर टारगेटिंग इट, राइट. उनके लिए तो उन्होंने एक ट्वीट करके छोड़ दिया, बट हाउ मच दैट ट्वीट इम्पैक्ट्स एवरीवन, दे डोंट नो. भले हम कितना भी बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग है, तो नहीं है स्ट्रॉन्ग यार. हम लोग के बच्चे ही लिटरली 20 साल के बच्चे हैं, 20-25 साल के बच्चे हैं. इतना गाली दोगे तो लगता है. एंड इवन सब सुन के भी हमको काम करना पड़ता है, कोई चॉइस नहीं है. अगर काम करना बंद कर दूंगा तो जो लोग बच गए उनका भी जॉब जाएगा, तो क्या करें. सो वी somehow deal with it. We should not do it. People should not do it. They should respect the business decisions. But वही है कि छोटे लोग हैं तो लोग बोलेंगे. कोई अंबानी को थोड़ी बोलता है, कोई इलॉन मस्क जाकर बोलेगा भाई तुम क्यों फायर किया, बोलने की ना. बट हमारी हमको बोलेगा औकात है तो बोल देते. तो वही है, हमारी सोशलिस्ट कंट्री है थोड़ी बहुत. तो अगर जैसे यहाँ पे अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, ऑटो वाले एंड ऊबर वाले इस वक्त प्रोटेस्ट करेंगे. पहले भी ऐसा हुआ था जब टैक्सी वाले
वालों को रिप्लेस करने ऊबर आई थी, तब टैक्सी वालों ने प्रोटेस्ट किया था. नाउ ऊबर इज देयर, अब ऊबर का रिप्लेसमेंट आएगा तो फिर से प्रोटेस्ट होंगे. तो ये साइकिल चलता जाएगा. तो इस कारण लाइक कैपिटलिस्टिक माइंड जो रियल है वो सिलिकॉन वैली में ज्यादा है. और ये जो प्रिंसिपल है हायर फास्ट फायर फास्ट, सुनने में आसान लगता है. हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू इम्प्लीमेंट इन इंडिया? सो इन इंडिया जहाँ तक मैंने देखा है, राइट, हायरिंग फास्ट मोस्टली हैव बीन ओकेस. मतलब पीपल आई हायर, mostly we hire really fast, like literally I take split-second decisions, because no matter what I do, right, there's no way to judge the people in a half an hour interview. You can't do that. No matter how smart you are, how skilled you are, there's no way to judge a person with a 30-minute interview. You can't, because in the interview it's like dating. When you go on the first date, वो बंदा अपना बेस्ट दिखाता है. लड़ाइयाँ शुरू होती है 2 महीने बाद, जब उसका एक्चुअल सही रूप समझ में आता है. You can't be with a person for 2 months and figure out कि इसको हायर करना ही नहीं करना है. So what I do, I hire them. एक महीना काम करके देखता हूँ, सही है तो सही है, नहीं है तो भाई जा अपने घर पे. तेरे को दुख होगा, ठीक है, बट एटलीस्ट तेरे लिए अच्छा है कि तुम्हारे लिए सही फिट नहीं है, मेरे लिए भी अच्छा है. सो इन हायरिंग आई डोंट वेस्ट टू मच टाइम. भाई मेरे को अच्छा लगा बंदा, लग रहा है कि अच्छा कर लेगा, थोड़ा उसके अंदर इंतु है, ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, काम कर ले. समझ में नहीं आया, आई विल गिव 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, 3 फीडबैक्स. नहीं हुआ भाई, कोई बात नहीं, कोई और देख ले. आई विल नॉट लेट यू स्लो डाउन एंटायर टीम. सो दैट वे काइंड ऑफ वर्क्स फॉर मी. बट व्हेन यू आर एट ए लार्ज स्केल, चलो ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे लोग जिसको फर्क पड़ता है, मेरे को सुमित को फर्क पड़ता है, राइट, हम लोग खुद ही बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होते हैं इन एवरी सिंगल थिंग. बट जहाँ पे लार्ज कंपनीज होती है, लेट्स से वी आर वर्किंग विद 5000 एम्प्लॉइज, वहाँ पे दिस डजंट वर्क, बिकॉज वहाँ पे हायरिंग इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉब्लम. कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा उस खराब हायर का? एंड नो सिंगल पर्सन वांट टू टेक ए ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बैड हायर. सो व्हाट दे विल डू, दे विल इंट्रोड्यूस 10 लेयर्स ऑफ डिफरेंट फिल्टरिंग. सबसे पहले डिग्री चेक करो, ये चेक करो, ऐसा चेक करो, वैसा चेक करो, उसके बाद पहला राउंड लो, दूसरा राउंड लो, तीसरा राउंड लो, 5वां राउंड लो. ऑल दोस राउंड्स आर फॉर व्हाट? जस्ट टू मेक श्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड अक्रॉस 10 डिफरेंट पर्सन. कि कल को फट गया, बंदा खराब निकला, तो भाई तूने भी तो चेक किया था ना. इफ वन हायरिंग मैनेजर टेक्स फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 1 पर्सन कि हाँ मैं अपने दम पे हायर कर रहा हूँ, जिंदगी चेंज हो जाएगी सबकी, कंपनी की चेंज हो जाएगी, बंदों की चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है. बट नो वन वांट्स टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज उस बंदे को खुद अपनी जॉब ढूंढनी है ना. वो बंदा खुद अपनी जॉब ढूंढ रहा है, वो नहीं चाहता कि मैंने 5 लोग हायर किया, वो बंदा गधा निकले. तो वो क्या करेगा, सब कुछ चेक करवा के आएगा कि ये सब फिल्टरिंग क्यों हो रही है, वही सब की वजह से हो रही है. मेरे को वो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो डिग्री भी नहीं चेक करता. फिर तुम्हारा डिग्री कौन सा है? काम करना आता है, मैंने असाइनमेंट दिया, करके दे दिया, मैं इधर से वही करवाने वाला हूँ जो मैं तुमको करने के लिए दे रहा हूँ. मैं अगर तुमको फ्रंट एंड करवाने वाला हूँ तो मैं तुमसे फ्रंट एंड डिजाइन करवाऊंगा. मैं तुमको नहीं बोलूँगा उल्टा लटक के बाइनरी ट्री करा बता, मेरे को नहीं, जरूरत ही नहीं है जिंदगी में. तो भी कभी तुमसे मैं बाइनरी ट्री रिवर्स नहीं करवाने वाला. तो मैं सवाल तुमसे कोई पूछूँ, मैं तुमको क्या बनने वाला हूँ, ये मेरा डिजाइनर ने फिग्मा दिया, इस फिग्मा को रिएक्ट में बना के दे दिया अच्छे से. वो अगर तुमने 100% परफेक्शन के साथ बना के दे दिया, तो उसके अलावा मुझे क्या चाहिए? उसी में तुमको पैसा दे रहा, वही करके दे दे. कल को मुझे बाइनरी ट्री वाला बंदा चाहिए, तो मैं बाइनरी ट्री वाला बंदा हायर करूंगा ना. फ्रंट एंड वाले से मैं क्यों बनाऊंगा? अगर नहीं तेरे को ही कल को इंटरेस्ट हो रहा है कि मुझे चलो बैकएंड में जाना है, तो जब तुम बैकएंड में जाने के लिए बोलोगे मुझे जाना है, तब मैं बैकएंड का सवाल पूछूंगा. अभी मैं तुमसे पूरी दुनिया पूछे कि भाई एक काम कर, ऊबर कैसे बनता है, उसका सिस्टम बना के दे, जबकि उस बंदे को लिटरली लाइफ में कुछ नहीं करना, 4 एक्सप्रेस के एंड पॉइंट बनाने हैं. All that guy has to do in a company is create 4 endpoints in Express, for example. Just saying, right? The company is asking him design the system architecture of Uber. भाई तेरी कंपनी में कोई एक बंदा नहीं जिसने बनाया है. उससे पूछ के क्या मिलेगा तेरे को? उससे जो करवाने वाला है उसको कितने अच्छे से आता है वो देख ले. वो बंदा कितना एंथु है, देख रात भर काम करता है, दिन भर काम करता है, वो देख ले. कर रहा है तो हायर कर ले. उसके बाद नहीं चलेगा तो बोल देना भाई नहीं हो पाया. अब उससे इतना सब पूछ के, इतना प्रेशर डाल के यूपीएससी थोड़ी पास करवाना है उससे. बट दिस इज व्हाट इट इज, तो क्या ही बोलेंगे. जी, ये तो है, हमारा हायरिंग प्रोसेस ब्रोकन है. दैट्स व्हाई लाइक स्टार्टअप्स, इंडियन स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर चेंजिंग इट. 70% ऑफ द हायरिंग रिसेंटली जो हुई है डीएसए की जगह, वो एक्चुअली स्किल्स बेस पे हो रही है कि आप खुद जो यूज करने वाले हो. तो प्रिंसिपल्स आर चेंजिंग रियली फास्ट. डीएसए वेरी भी इंपॉर्टेंट है, बट इट्स इवॉल्विंग रियली फास्ट. और इसी बात पे मेरा क्वेश्चन ही होगा आपसे कि आप अपना इंजीनियरिंग सिस्टम कैसे डिजाइन करते हो, हाउ यू ओबे इट. बिकॉज लेट मी टेल यू एग्जांपल. मैं इतने इंजीनियर से बात करता हूं, एक बहुत पॉपुलर लीडरशिप प्रिंसिपल है अमेजॉन का, कि ओनरशिप का, जैसे आपने मेंशन किया. मैंने अमेजॉन के इंजीनियर से इंडिया में बात करता हूं, खुद ओबे नहीं करते. अगर कोई बग कॉज करता है, जैसे इमेजिन करो मैं बग कोई सिस्टम में क्रैश कर देता हूं, आपका मैनेजर मीटिंग में पब्लिकली ब्लेम कर सकता है कि हरनूर ने किया है इंडिया में, पर बाकी जगह पे जहां पे लीडरशिप प्रिंसिपल अच्छे से लेड आउट होते हैं, कहा जाता है वी ब्रोक इट, वी आर फिक्सिंग इट. तो आप अपना इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स कैसे डिजाइन करते हो सो दैट इट्स वेरी प्रोडक्टिव? See, at the end of the day, the responsibility lies in the management, in the leadership. At the end of the day, that's me, right? If I'm using technology, the responsibility lies with me. किसी और को ब्लेम करने का कोई पॉइंट नहीं. किसी एक बंदे की मिस्टेक से सिस्टम डाउन नहीं हो सकता.
इफ किसी एक बंदे की गलती से सिस्टम डाउन हो गया, तो ये प्रॉब्लम आपकी खुद की है कि आपने ऐसा सिस्टम डिजाइन नहीं क्यों कि एक बंदे की मिस्टेक से आपका सिस्टम डाउन हो गया। अभी गिव यू सिंपल एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने एक छोटा सा कोड पुश कर दिया, वो कोड फॉल्टी है और उस कोड की वजह से आपका प्रोडक्शन डाउन है, तो प्रॉब्लम उस बंदे की है आपका है कि उसके एक फॉल्टी कोड प्रोडक्शन में चला गया, प्रॉब्लम किसकी है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्लेमिंग दैट गाय? समझ रहे हो? बिल्कुल सही। इन दुकान राइट, व्हेन वी स्टार्टेड बिल्डिंग दुकान, वी स्टार्टेड राइट एंड दैट वाज ओके, 60 लोग थे तो उसमें से कुछ ना किसी की गलती रहेगी जी। आई नेवर वंस सेड एनीथिंग टू एनी पर्सन, आई जस्ट लुक्ड एट कि क्या हुआ था, बता मेरे को, समझा मेरे को डिटेल में क्या हुआ था, लेट मी फिगर आउट कि हाउ डू आई मेक श्योर कि इस मिस्टेक की वजह से वापस से मेरा प्रोडक्शन बंद ना हो, हाउ डू आई मेक श्योर कि इस मिस्टेक की वजह से वापस मेरा प्रोडक्शन डाउन ना हो। वो करते करते आफ्टर 2 years वी आर एट अ स्टेज जहाँ पे तू कुछ भी कर दे, तुम्हारी गलती से बंद नहीं होगा। हेल्थ चेक्स चलते हैं अपना, आई विल गिव यू नॉर्मल प्रोसेस राइट। सो व्हेन ए डेवलपर राइट्स अ कोड एंड ही पुट्स ऑन रेपो, इनिशियली तो हम डायरेक्टली पोस्ट करते थे मास्टर में डिप्लॉय कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन पे चल गया, कोई बात नहीं, दैट वाज फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। देन सिस्टम्स डाउन होने स्टार्ट हुए, देन स्टार्टेड टू किसी किसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वी विल वेरी इवॉल्व टू ए वेरी सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ ए मिनी सर्विसेज काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। तो नाउ जब आप गिटहब पे पुश करते हो, सबसे पहले टेस्ट केस रन होगा, टेस्ट केस अगर रन हुआ, टेस्ट केस ने अगर कुछ कैच कर लिया तो आपको उधर ही फेल हो गया, आपका वही पे चलने वाला नहीं है। टेस्ट केस भी अगर पास हो गया एंड लेट्स से खुदा ने खासा कोई बग पुश हो गया, तो गलती किसकी है? हमने टेस्ट केस नहीं लिखा था, सिस्टम की, हमने टेस्ट केस नहीं लिखा था, वो केस टेस्ट में पास होना चाहिए, कैच होना चाहिए था। तो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आई विल मेक श्योर कि व्हाटएवर वी आर पुशिंग दैट शुड बी कॉट इन द टेस्ट केस एट एनी पॉइंट एनीवेयर। चलो ठीक है, टेस्ट केस समहाउ टेस्ट केस ने पास कर दिया एंड सिस्टम वेंट ऑन टू हैव एक्चुअल बिल्ड हो गया, इट वेंट्स टू द सीआई सिस्टम इसको ओके मार दिया, इमेज बन गई उसकी डॉकर पे। नाउ दैट डॉकर इमेज गोज टू आवर इंफ्रा एज अ कोड फोल्डर, जहाँ पे इंफ्रा एज अ कोड सिस्टम ने बना रखा है कि उसका कोड अपडेट हुआ था, दैट विल गो इन इंफ्रा एज अ कोड फोल्डर, गिटहब पे डिपॉजिटरी है, उसमें उसका इमेज का वर्जन अपडेट हो जाता है। इमेज का वर्जन अपडेट हो गया, हमारा जो सीडी सिस्टम है, उसी जो कंटिन्यूस डिलीवरी सिस्टम, दैट विल पिकअप कि अच्छा इस फलाने सर्विस की इमेज अपडेट हो गई है, मुझे अब ये डिप्लॉय करना है। ये क्या करेगा? ये डिप्लॉय करेगा, डिप्लॉय करने के लिए क्या नया इमेज का एक डिप्लॉयमेंट बनेगा। उस डिप्लॉयमेंट पे सबसे पहले हेल्थ चेक चलेंगे वापस से। पहले जो हेल्थ चेक चला था दैट वाज यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट क्या होता है कि नॉर्मल यूनिट टेस्ट है कि आपका सारे फंक्शन चल रहे नहीं चल रहे, बराबर चल रहे नहीं चल रहे, एपीआई जो चल रही थी वो सब चल रही थी, एक दो इंटीग्रेशन टेस्ट भी रहेंगे, जो एपीआई फ्रंट एंड को चाहिए था वो एपीआई सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ पे हेल्थ चेक चलता है कि जो उसने डिप्लॉयमेंट किया वो डिप्लॉयमेंट हेल्दी है नहीं है। अगर डिप्लॉयमेंट हेल्दी है then it will start to promote the deployment to 5% of the users. उसको हम बोलते हैं रोलिंग अपडेट या कैनरी डिप्लॉयमेंट बोल दो, जो भी बोल दो, कि विल ओनली डिप्लॉय टू 5% of the users. Then we'll start to capture, we anyway capture every single metric that is coming in the system. कि सिस्टम में जो मेट्रिक्स हैं उसके गोल्डन रेशियो कह लो आप, फॉर एग्जांपल गोल्डन सक्सेस रेट जो भी बोल दो राइट, उसमें आपका मोस्टली आता है कि आपका सक्सेस रेट कितना है एपीआई का। लेट्स से आपने अगर 1000 एपीआई कॉल्स मारे तो आउट ऑफ 1000 एपीआई उसमें कितने सक्सेसफुल थे? सक्सेसफुल मतलब 200 कितने आए थे एंड 500 कितने आए थे, 400 कितने आए थे, आफ्टर दैट रिटेंसी कितनी है उसकी, एरर रेट कितना है एंड उसमें और कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या। दिस वी आर एबल टू कैच ऑन द 5% लेवल इटसेल्फ। नाउ आई हैव ए बेस बेंचमार्क कि आई नो कि मेरा हेल्दी सिस्टम का ये सारा रेशियो कितना है एंड नए वाला सिस्टम का हेल्दी रेशियो कितना है। बेस मेरे पास था ही। All these metrics goes to Prometheus. Prometheus पता आपको, that is a very large scale metric store. We collect more than 1 million metric every minute from the entire system on Dukaan. That's 1 million data points coming every single minute from the entire platform of Dukaan that we store in Prometheus. वहाँ पे जैसे ही कोई नया डिप्लॉयमेंट जाएगा तो वी रन ए चेक, जस्ट बेसिकली वाइल लूप लगा कर देखते हैं कि जो मैंने नया वर्जन डाला है उस वर्जन में मेरा एरर रेट कितना है वर्सेस मेरा इस डिप्लॉयमेंट की बेस एरर रेट कितनी है। अगर यहाँ पे चीज़ें फट रही है, कोई डिप्लॉयमेंट गलत हो गया तो 500 आने लगेगा, लेटेंसी बढ़ जाएगी, कुछ तो होगा, एरर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, एरर रिपोर्ट जो ज़्यादा करने लगेंगे, वी नो ये डिप्लॉयमेंट फॉल्टी है, आई विल नॉट लेट इट प्रमोट फ्रॉम 5 to 10 एनीवे, आई विल जस्ट रिवॉर्ड इट देन एंड देयर, यू गेट एरर एंड स्लैक एंड वो डिप्लॉयमेंट जाएगा इन प्रोडक्शन पे, सिंपल एज दैट। अगर लेट से वो 5 से 10 पे चला गया, 5 पे कैच नहीं हुई, 10% पे कैच हुई, तो 10% पे कैच हो गई, वाई दैट 5%, 10%, 50%, 100%, द इंटायर प्रोसेस विल टेक प्रॉब्ली 2 hours टू डिप्लॉय, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2 घंटे में सिस्टम ने मोस्टली चीज़ें कैच कर ली, उसके बाद भी अगर कैच नहीं किया एंड सिस्टम में कुछ तो बग आ गया या सिस्टम डाउन हो गई, इसका मतलब क्या है? ये जो सारा प्रोसेस था, सारा प्रोसेस फेल हुआ ना। उसमें जिस बंदे ने कोड पुश किया उसका तो जीरो मिस्टेक है ना। इनक्रेडिबल डिजाइन ऑफ योर सिस्टम। बेसिकली आप हर जगह पे हेल्थ स्टेटस देखते हो, मेट्रिक्स कलेक्ट करते हो, हर जगह कोड डिप्लॉयमेंट में चाहे टाइम ज्यादा लगे, यू हैव चेक्स एंड बैलेंसेस, यूनिट टेस्ट हर जगह लगाए हैं। बट एनी सिस्टम कैन ब्रेक। फॉर एग्जांपल क्राउड स्ट्राइक का जो सिस्टम ब्रेक हुआ था, बैड कोड was pushed to production और जिस टेस्ट को प्रिवेंट करना था वो टेस्ट केस ही ब्रोकन था।
सो बेसिकली वो चेक्स एंड बैलेंसेस ब्रोकन थे, रॉन्ग टाइम पे फ्राइडे को वो पुश करते हैं और $500 मिलियन का लॉस होता है सिर्फ डेल्टा कंपनी का, जिनकी थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल हो गई एंड दे आर ट्राइंग टू सू क्राउडस्ट्राइक एंड माइक्रोसॉफ्ट फॉर इट. अब ये बताओ, अगर ये खुदा ना करे किसी कंपनी में हुआ ऐसा, इमेजिन करो होता है, तो हाउ यू आर थरो विद इट? Of course. So see, in this, right, so when this happened, right, I was at Delhi airport and my flight was stuck and I was not able to book another ticket because जिस सिस्टम से वो लोग टिकट बुक करते हैं वो सिस्टम डाउन था. कार्ड से पेमेंट नहीं हो सकता था बिकॉज कार्ड का सिस्टम भी बंद था उनका, एटीएम भी बंद था, एटीएम से भी पैसे नहीं निकल रहे थे, उनका जी यात्रा नहीं चल रहा था. एंड आई वाज स्टक ऑन द एयरपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट 10 hours and I was just thinking कि how bad system design it was, right, कि you are dependent on one party which is basically which can break every single thing. So इसमें collectively failure, जिस बंदे ने कोड पुश किया था उसकी थी क्या? नहीं. जिस बंदे ने कोड पुश किया उसकी थी क्या? नहीं. अगर इतनी बड़ी मतलब पूरी दुनिया का सिस्टम एक बंदा कोड पुश करके बंद कर सकता है, तो दैट इज अ फेल्योर डायरेक्टली ऑन द मैनेजमेंट को. सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई मैंने गलती करी है. एंड उसमें मतलब हाउ डू आई सी, इफ आई सी एज ए इंजीनियर, राइट, इफ यू आस्क मी कि भाई तुम्हारी गलती से इतना सब कुछ हो सकता है, मैं कोड पुश ही नहीं करूँगा. मैं पुश करने से पहले 600 बार सोचूंगा कि मेरी गलती है क्या, मेरी गलती से अगर पूरा दुनिया बंद हो सकती है. हाउ कॉन्फिडेंट यू आर टू पुश दैट कोड? यू विल नॉट पुश द कोड. मेरी कंपनी में पर डे वी डू मोर देन 200 डिप्लॉयमेंट्स. पर डे वी डू मोर देन 200 डिप्लॉयमेंट्स सिंस लास्ट 3 years. मेरे गिटहब का हिस्ट्री आप निकाल के देख सकते हो. मैंने एक पॉडकास्ट में लिटरली निकाल के दिखाया था उनको कि मेरी गिटहब का हिस्ट्री देखोगे तो पर डे वी डू मोर देन 20 या 200 डिप्लॉयमेंट्स वी डू एवरी सिंगल डे. दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल बाय पुटिंग अ गन ऑन द एम्प्लॉय कि भाई तुम्हारी वजह से सब कुछ फट जाएगा. नहीं हो सकता, वो बंदा करेगा ही नहीं. सबको अपनी जिंदगी प्यारी है, सबको अपनी जॉब प्यारी है, वो करेगा ही नहीं. व्हाट इससे तो कुछ पुश भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो पुश कर दे प्रोडक्शन पे, कोई दिक्कत नहीं है. सुमित यहाँ पे लोगों को लेके बैठता है, बोलता है मैं जो चेंजेस बोल रहा हूँ कर दे एंड पुश कर दे. नो कॉन्फिडेंस की अगर कुछ फाड़ दिया तो सिस्टम कैच कर लेगा. उसको पता है कि इसकी गलती से सिस्टम बंद हो जाएगा तो कभी करवाएगा क्या? नहीं करवाएगा. सो दिस वाज ए कलेक्टिव फेल्यूर ऑफ द इंटायर सिस्टम, नॉट द डेवलपर. उस बंदे की इतनी गलती, उसने कोड पुश किया. फ्राइडे को बंदे ने कोड पुश किया, वो उसकी अच्छाई थी कि घर जाने से पहले उसने कोड पुश किया, उसके बाद भी वो सिस्टम फट गया. जस्ट थिंक अबाउट हाउ मेनी थिंग्स वर ब्रोकन. द इंजीनियरिंग कल्चर ऑफ दैट कंपनी इज ब्रोकन. And not just that company, right? Every single company who is using, so I will tell you that in corporate, right? In corporate, compliance and IT is just a checkbox. The people who are running business, उनको फर्क नहीं पड़ता. उनके लिए CrowdStrike, why the fraud? If you think about CrowdStrike, right? Why in the first place the CrowdStrike come in every single airline computer in the first place? जरूरत ही नहीं होनी चाहिए ना. आया क्यों? Because there is something called compliance. Compliance एक ऐसी चीज है जिसको किसी को पड़ी नहीं है, बट एक नेसेसिटी, बोलते हैं ना, गली की हड्डी है, आप छोड़ नहीं सकते उसको. तो वो लोग क्या करते हैं, कंप्लायंस के लिए कितने सारे क्या करना पड़ेगा, कई सारे चेक बॉक्स है. सो व्हेन आई वाज डूइंग माय ISO सर्टिफिकेशन, राइट, वी आर डूइंग ISO 27001 सर्टिफिकेशन में क्या है, जस्ट कंप्लायंस है. मेरे को भी चाहिए, आई डोंट नो, बट जस्ट मेरे कस्टमर को चाहिए कि यू शुड बी 27000 कंप्लाइंट. तो मैं भी बोला भाई कर लेते, देखते क्या है. तो उन्होंने भी चेकलिस्ट में 300 आइटम्स लिख रखे हैं कि ये तो चाहिए, ये चाहिए, चाहिए. मेरी कंपनी में ऐसा कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है अभी के लिए विच कैन मेक ऑल ऑफ द कंप्यूटर गो कबूम वंस. बट if I have to take ISO 27000 certification, I have to have a endpoint security in place. That is requirement of the compliance. For every airlines company, there is a compliance that says you should have to have endpoint security. CrowdStrike is an endpoint security company. जी. Endpoint security अगर compliance का पार्ट है, उसके बिना मुझे लाइसेंस नहीं मिल सकता, तो मैं क्या करूँगा? कराऊंगा. तो उन्होंने सबने वही ले रखा है एंड सबको कंप्लायंस, मतलब CrowdStrike सबको पता है, तो उन्होंने जाके सबसे कंप्लायंस ले लिया. उसके बाद किसी ने उसको आज तक देखा नहीं कि क्या चल रहा है, बिकॉज किसी को नहीं, लाइक आई सेड, राइट, फॉर एवरी सिंगल पर्सन जस्ट चेक बॉक्स. उन्होंने चेक बॉक्स चेक कर दिया कि हाँ कंप्लायंस है मेरे पास, हो गया, डन. उसको किसी को नहीं पड़ी है कि आईटी सिस्टम में क्या चल रहा है. एवरीवन, जब तक कुछ फटेगा नहीं, सब लोग चुप कर बैठे हुए हैं, सबको कंपनी रेवेन्यू बढ़ाने से मतलब है, सबसे मतलब है. अगर किसी ने देखा होता तो इतनी बड़ी चीज़ है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर, आपको किसी को तो दिखा होता ना. इतना बड़ा एयरलाइन का सिस्टम है, राइट, हजारों एयरलाइंस हैं, लाखों फ्लाइट्स रोज की चलती हैं, किसी ने तो देखा होगा ना भाई एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर क्रॉस. किसी ने नहीं देखा, क्यों? तो सबके लिए जस्ट कंप्लायंस का चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स कर दिया, साइन कर दिया, लाइसेंस मिल गई, लाइसेंस हो गया, धंधा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नोबडी केयर्स. बट इफ यू टेक एयरलाइन फॉर एग्जांपल, एयरलाइंस इतने सेफ क्यों है आज के डेट में? इफ यू टेक एयरलाइन एज अ मोड ऑफ ट्रेवल, राइट, इतने सेफ क्यों है आज के डेट में भी? एंड व्हाई इवन इफ द सिस्टम्स वर डाउन, एयरलाइन वाज एबल टू फ्लाई? बिकॉज एयरलाइन में सबको पड़ी है, द अथॉरिटी हु डू FAA है यूएस का जी, उनका जो NTSB है इज फॉर एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन. आई यूज्ड टू वॉच, आई हैव प्रीटी मच वॉच्ड एवरी सिंगल एपिसोड ऑफ एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन, एंड दैट इंस्पायर्स मी टू डू बिल्ड सिस्टम व्हिच इज हाईली आई वुड से resilience to failures. What I've learned by watching aircraft videos is that a failure is never a single event. It's a series of events that goes wrong that will cause the airline to crash.
A modern airliner cannot crash with a single component का failure. Same like my system cannot crash with a single person का failure. It has to be a series of events that goes wrong, a series of components that goes wrong, because when you design an airline, the authorities have learned from their mistakes because it costs human lives. So what they have done is कि they have a fallback for every single component in the aircraft. And जो मेजर कंपोनेंट्स के 3-4 फॉलबैक्स लगा रखे हैं कि अगर आपका लेट्स से पावर फेलियर हो गया, दे हैव एपीयू में एयरप्लेन के नीचे से एक पंखा निकलता है, जो पंखा जब एयरप्लेन चल रहा है तो उसके एयर स्पीड से एक पंखा चलना शुरू होता है, जिससे आपके क्रिटिकल फंक्शंस जो है, जो फ्लाइट कंट्रोल्स हैं, वो सारे चलने स्टार्ट हो जाते हैं. समवन थॉट अबाउट इट वाज नॉट इन द एयरक्राफ्ट ऑन डे वन. वाज इट इन द एयरक्राफ्ट इन द डे वन? नो, इट वाज नॉट. दे लर्न कि यार कभी अगर दोनों इंजन बंद हो जाएंगे तो क्या करेंगे. Airplane have 2 engines. To run the airplane, you only need one. They have 2 engines. Why? For redundancy. एक फट गया तो क्या होगा? They have thought about कि दोनों फट गया तो क्या होगा. Aircraft still need to glide and land on the runway, right? And अगर without power you won't be able to talk to the radio because power के radio नहीं चल सकता. तो they build a actual auxiliary power unit जो सिर्फ इस पे चलता है, आपका हवा पे चलता है. They thought about it. And that way, by thinking about it, by learning from every single mistakes, they design the system in a way जहाँ पे no matter what happens, the airline will not crash. And आज के डेट में एयरलाइन के अगर आप सेफ्टी रिकॉर्ड देखोगे तो it has the best, your chances of crashing in a car crash is more higher than your chances of actually dying in a plane accident, only because of the safety. That level of safety doesn't show on the ground. उसी लेवल का थॉट ग्राउंड पे भी हुआ होता तो जो हुआ था कॉर्ड स्ट्राइक नहीं होता ना. Nobody, because उसमें NTS में इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज उसमें FAA इन्वॉल्व नहीं है, उसमें DGCA इन्वॉल्व नहीं है. DGCA का एक ही काम था कंप्लाइंस कर दो, बट दैट इज नॉट हैपनिंग व्हेन इट इज कम टू एयरप्लेन्स, बिकॉज उनको पता है अगर एयरप्लेन में इतनी लापरवाही दिखाई तो उनकी कंपनी बंद हो जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड ऑनरशिप, बिकॉज समवन हैव टेकन द ऑनरशिप. छोटी सी गलती होती है, डंडे मार मार के सब कुछ इंस्टॉल करवाते हैं उनसे. जब तक भाई 787 मैक्स का देखा था आपने, छोटी सी गलती थी, FAA ने क्या किया, सारे प्लेन बंद कर दिए. भाई चलेगा ही नहीं तेरा प्लेन. जख मार के कंपनी को ठीक करना पड़ा ना, जख मार के करना पड़ा ना. वहाँ पे भी देखोगे तो व्हाट द कंपनी डू वाज व्हेन यू लर्न अबाउट 787 मैक्स, राइट, कि कंप्लायंस वाज कि इफ यू डिजाइन द एयरक्राफ्ट यू हैव टू गो फॉर द सर्टिफिकेशन अगेन. कंपनी ने क्या बोला, ठीक है डिजाइन नहीं करके इसी में थोड़ा ठोक पीट के थोड़ा थूक पट्टी लगा के चला देते हैं. दैट वाज द रीजन जी. कंप्लायंस को ही बाईपास करने के लिए चेक बॉक्स मार के चलो ठीक है हम एयरक्राफ्ट डिजाइन नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक काम करते हैं पीछे से थोड़ा सा इसको हेवी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में पुश कर देते हैं एंड इससे हो जाएगा. बट दैट कॉज क्रैश. उसके बाद क्या बोला FAA ने, भाई हो गया तुम लोग जितना भी करना था मगजमारी, अब नहीं होगा ये सब. So they learn those kind of ownership we don't see in software systems. The moment we see it, software systems must चलते हैं. मेरे system में like on one of the podcast I was trying to show I think क्या नाम था उसका, अर्पित. The way my systems is built, right, my front end systems, I have 22 data centers across the world. All of the data centers have exact same copy of all the stores from Dukaan. If one data center goes down, my system will automatically fall back to the next one. If that goes down, my system will fall back to the next one, till the time 22 data centers across the world is nuked out. Show me one company in the entire world who have that kind of redundancy built in. Not one company have it. मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर बंद नहीं होता, हार्डली हो. कभी हमने खुद से बंद कर दिया, हमारी गलती है, वो अलग चीज़ होती है. बट अपने आप में जो सिस्टम फेलियर्स होते हैं उससे नहीं होता, बिकॉज आई हैव बिल्ड दैट काइंड ऑफ रेडंडेंसी इन द सिस्टम. एवरी सिंगल लोकेशन इज फुल्ली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. देयर इज नो सिंगल लूज कपलिंग बिटवीन एनी ऑफ दोज लोकेशंस. कुछ भी हो जाए एंड दैट नॉट जस्ट हेल्प मी इन क्या कहते हैं रिलायबिलिटी, बट ऑल्सो इन परफॉर्मेंस इन स्केल. So when event like Shark Tank happens and when on a store you get sudden influx of users from let's say 200 on a single store, from 200 visitors to 80,000 visitors in less than 30 seconds because your domain is now flashing on let's say television, what do? You cannot auto scale no matter what you do. So what we do, the moment we start to say traffic spike होना start हुआ, we reroute the traffic to all those locations I have. दुनिया गोल है. इंडिया में अगर दिन है तो US में रात है, तो मेरा इंडिया में अगर बढ़ना स्टार्ट हुआ US का, मेरा तो सारा पूरा ट्रैफिक खाली, पूरा सिस्टम खाली बैठा है ना, मैं रिराउट कर दूंगा. क्या हो गया, 200 मिलीसेकंड की एक्स्ट्रा लेटेंसी ऐड होगी टू गेट अ स्टोर लोड, बट स्टोर बंद नहीं होगा. एंड इन आइडियल टाइम व्हेन माय ट्रैफिक इज इंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ यू आर फ्रॉम मुंबई यू विल हिट माय मुंबई डेटा सेंटर, इफ यू आर इन बैंगलोर यू विल हिट माय बैंगलोर डेटा सेंटर, यू विल गेट द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस. We innovated, we built all those things. This thing doesn't exist. When I started building Dukaan, none of this system existed. I had to build it because I wanted to give the best performance and best serviceability to my customer. Because मैं Shopify से compete कर रहा हूँ. And we were able to do it. अगर एक छोटी सी कंपनी बेंगलोर में बैठ के एक ऐसा बंदा जो लिटरली उसको कुछ नहीं आता वो कर सकता है, तो the people who are really smart can absolutely do it. The only thing is, do they want to do it?
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें इस क्राउड स्ट्राइक के जिस एम्प्लॉय ने गलती की थी, लोग तो ट्वीट कर रहे थे उसको फायर करो. बेसिकली जब क्राउड स्ट्राइक के एम्प्लॉय ने गलती की थी सभी ट्वीट कर रहे थे उसको फायर करो, बट एक्चुअली कमी थी रिडंडेंसी, एक्चुअली कमी थी कि चेक्स एंड बैलेंसेस हर लेयर पे होने चाहिए एंड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए. एंड आपने अपना सिस्टम डिजाइन किया कि आपने अलग अलग डेटा सेंटर्स बनाए हैं, और अगर कुछ बैड कोड फॉल्टी जाता है, पहली गलती डेवलपर की, दूसरी जिसने कोड रिव्यू किया, तीसरी डिप्लॉयमेंट में अगर वो स्ट्रक्चर यूनिट टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रोकन था, एंड देन फोर्थ स्टेप इज एक्चुअली डिप्लॉयमेंट अप्रूवल, उस पे भी अप्रूवल आपने लगाया. तो ये 4 फेलियर्स के बाद ही आपका सिस्टम, किसी का सिस्टम क्रैश होता है. Am I right? Even then, if they deployed, let's say इतना भी हो गया, उसके बाद भी when deployment started to happen, right? At no point if such a large scale system can go to 100% of users and faulty. जब 5% लोगों को फटना स्टार्ट हुआ था, then and there they should know कि कुछ फट गया है and stop it. जो हुआ नहीं. वो बहुत ही गलत है. मैंने हर क्लाउड कंपनी में देखा है, मैं तो खुद क्लाउड कंपनी में काम करता हूँ, 5%, 10, 15, 50, 100 ऐसे होता है. एंड आई कुडंट बिलीव कि फ्राइडे को, ठीक है यार, क्या देखो क्या होता है, सिस्टम्स हैं, फटते हैं, कुछ नहीं कर सकते. नो मैटर हाउ गुड सिस्टम यू डिजाइन, इट विल ब्रेक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड हैपेंस. कुछ नहीं कर सकते. मतलब I assume they have done the best that they could. ठीक है, they could do something better, but they have done what they could. And उसके बाद फट गया तो फट गया, पार्ट ऑफ लाइफ, कुछ नहीं कर सकते. सॉफ्टवेयर आज तक फटेगा ही फटेगा, कुछ नहीं कर सकते उसका. जिस दिन फटेगा, you learn from what went wrong, you improve upon it. They will learn, they will improve their systems, their airlines will improve their systems. Systems बिना फटे improve नहीं होती है. Like I said, right, no matter आप भी 2 फोन लेके तभी जाना शुरू करोगे जब पहले दिन आपका पहला कभी फटा हुआ रहेगा. जी. जब आप शूट करने गए, आपका फोन नहीं चल रहा है, कैमरा नहीं चल रहा, देन यू स्टार्ट टू बिल्ड द रिडंडेंसी. नहीं तो लोग नहीं करना चाहते, बिकॉज इट हैड अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट, राइट. नोबडी वांट्स टू टेक कॉस्ट एज अ मेट्रिक ऑन डे 1 के मैं 5 फोन लेके जाऊंगा. सो सिस्टम फटेंगे, लोग सीखेंगे इनसे. द थिंग इज कि डिड दे लर्न फ्रॉम इट एंड विल दे डू बेटर नेक्स्ट टाइम. And I'm sure they have learned a lot from this. I'm sure the cost of this failure was just too high for them. Companies are swinging it for them $500 million or whatever. So that cost, I assume they will take it and then उसके ऊपर जो कर सकते हैं वो करेंगे. देखते हैं अभी. जी. Now let's move into AI. Like आप बहुत ज़्यादा AI applications develop कर रहे हो. So you have the biggest customers anyone can imagine in India. Biggest e-commerce platforms of India, biggest B2B customers. Now, आप explain करना कि when you started innovating into AI so that AI replace करे jobs, how do you develop a system? What model you use? एक step by step break कर सकते हो. Like Google के models है, because India में इतना capital नहीं है to create models, but we are good at using the best cost efficient model. तो आप कैसे use करते हो? Absolutely. So see, in AI, fundamentally there are 2 kind of people, right? The one is the builders and one is the consumers. अब ऐसा देखो कि आपके घर के छत के ऊपर में एक पानी का टंकी है, प्यास आपको लगी है, आप जा रहे हो कि पानी की टंकी में डुबकी मार के हर बार मुंह मारने के लिए? नहीं जा रहे हो. नहीं. आप पानी कैसे पीते हो? नल से पीते हो. उसको प्लम्बिंग बोलते हैं. हम लोग प्लम्बर्स हैं, हम लोग पानी की टंकी नहीं बना रहे. समझ लो जी. Someone has to do the plumbing, क्योंकि जो मॉडल्स बना रहे हैं, they are very high level models. You cannot take a model, put it in front of customer support or sales or any company and assume कि it will start working. वो नहीं हो सकता. वो फाउंडेशन मॉडल्स हैं. वो मॉडल एक बहुत ही ज़्यादा जेनरिक यूज केस के लिए बनाया गया है. वो मॉडल को मैं बोलता हूँ पानी की टंकी है. पानी समुद्र भरा हुआ है, उस पानी से आप 500 चीज़ें कर सकते हो. आप खेत पटा सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. आपका यूज केस क्या है? आपको पानी पीना है. जस्ट सेइंग. हमने क्या बना रखा है कि हमने एक पाइप डाल रखी है जो उस मॉडल को इस तरह से मोल्ड करके आपके पास लेके आ रहा है, हर एक कंज्यूमर के पास. तो आपको ये यूज केस है, आपका ये यूज केस है, आपका ये यूज केस है, ये करेंगे. तो हम लोग एआई मॉडल्स को तो प्लम्बिंग करते हैं. लिटरली बोलोगे तो हम लोग हाई लेवल व्हाइट कलर प्लम्बर्स हैं जो बैठे हुए हैं. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है फाउंडेशन मॉडल बनाने में. ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे एक्सपर्टीज है, ना मैं बना पाऊंगा. आज के डेट में क्लॉडी है, जीपीटी है, फेसबुक है, ओपन एआई है, गूगल है. सम ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज विद द मोस्ट लार्ज रिसोर्सेज पॉसिबल आर डूइंग एवरीथिंग इन देयर पावर टू बिल्ड फाउंडेशन मॉडल्स. मैं HSR में बैठ के अगर कोशिश कर भी लूँ कि मैं एक अच्छा मॉडल बना लूँगा, कैन आई मेक ए मॉडल बेटर देन? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. देन एक छोटा सा मेडिकोर मॉडल बना के कोई पॉइंट है क्या? जस्ट बिकॉज आई वांट टू प्रूव कि मैं बना सकता हूँ, मैं बना लूँगा, आई विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन इट. पर उतना पैसा है नहीं मेरे पास. आज मैं बिलियनर होता तो आज प्रोबेबली मेरे पास एक टीम होती जो बना रही थी मॉडल, बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है. जो भी पैसा है वो भी मैंने दूसरों से ले रखा है. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मनी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेयर होल्डर वैल्यू, राइट. तो इन दैट आई विल डू व्हाट आई कैन डू बेस्ट. दैट इज टेक द मॉडल दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट and take it to the consumers. That is called application layers. So in AI there are 2 things. The one is your foundational models, the second is called application layer. Both are equally important.
सिर्फ ओपन एआई ने भी अगर मॉडल बना के छोड़ दिया होता तो आज जीपीटी कोई नहीं यूज करता होता. The first model, if you see, right, the completion models that they had, right, if you see, those models were simply text completion models. आप उस पर कुछ बोलो 4 complete कर देता था. Nobody was using it. What they built a chat interface on top of it. वो model पीछे अभी भी वही है. Just interface change कर दिया, एक application डाल दिया. That is now being used by all the consumers. ChatGPT पे जाकर कुछ भी पूछते हो ना, आप भी पूछते हो, मैं भी पूछता हूँ, सब लोग पूछते हैं. Why? Because they build an application layer on top of the models. But they can only do so much. As a company who is very focused on building a model for all possible use cases, they cannot build use cases for every single company. What we do is we take that foundation model and we build the application layer on top of it. Both are equally important. हम नहीं बनाएंगे तो मॉडल यूज कौन करेगा? जी. सिर्फ ChatGPT से कंपनी नहीं चलने वाली, सिर्फ ChatGPT बेच के कंपनी नहीं चलेगी. उनकी जो AI का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो AI के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो रिसर्च हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर गेटिंग पुट इनटू द GPUs and research, R&D, consumption, electricity, all those kind of things, right? That will not simply be recovered by people who are doing ChatGPT for play. इंडिया में कितने लोग $20 पर मंथ देते हैं ChatGPT को? पूछ के दिखाओ मेरे को. नहीं देते हैं. तो वर्ल्ड वाइड देते हैं, बट बहुत कम लोग हैं. So that AI has to be used by actual businesses to solve problems in a way जहाँ पे it's more efficient than humans. Then only it can do something. आज के डेट में अगर कंप्यूटर्स आया होता, कंप्यूटर्स अगर इंसानों से अच्छा काम नहीं करता, इंसानों से सस्ता काम नहीं करता, तो कंप्यूटर चलता क्या? वाई आज आपके हाथ में स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, सब कुछ है, क्यों है? बिकॉज इट कैन डू वर्क बेटर देन ह्यूमंस. कैलकुलेशन ही करना है, सिंपल सा एक्सेल सीट में करना है, गूगल सीट में अच्छे से कर सकते हो ना आप. तो थिंक अबाउट द लार्ज मॉडल्स एज योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड योर एप्लीकेशंस एज योर एप्लीकेशंस. सिर्फ लिनक्स लेकर आप क्या ही करोगे? सिर्फ विंडोज लेकर आप क्या करोगे? अंटिल यू हैव वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब. अभी एज अ ओएस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बना दिया, बट बाकी 5000 एप्लीकेशंस भी है ना जो बाकी लोगों ने बनाया है, उसके में आप क्या करोगे? एप्पल ने आईफोन बना दिया, आप एप्पल का कितना आप यूज करते हो? बेयरली. एंड आप खुद का बाकी के थर्ड पार्टी आप कितने यूज करते हो? बहुत ज़्यादा. एक ओएस की जो वैल्यू है, दैट इज एज गुड एज विद द ओएस, एज गुड एज विद द एप्लीकेशन दैट इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट. उसको आप डिनाई नहीं कर सकते. जी. वी आर द एप्लीकेशन बिल्डर्स. माई यूज केस इज, माई एक्सपर्टीज is reaching out to customers, businesses, understanding their business and building a solution for that very very heavily business. उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? And that is my expertise. My expertise is building B2B SaaS. कि हमने सॉफ्टवेयर बना के स्मॉल बिजनेस ओनर्स को बेचा. The expertise of large model companies is to build foundation models. वो कितना भी चाह लेना कि वो जाके एप्लीकेशन लेवल ऐसा कुछ बना के हर एक कंपनी में बेच के आ जाए, नहीं होने वाला. यहाँ पे एक डील क्लोज करने में 2 महीना लगता है. हमारे बंदे उनकी कंपनी में जाके बैठ के एक महीने तक पूरा इंटीग्रेशन करते हैं, जब जाके एक कंपनी क्लोज होती है. आई विल गिव यू सिंपल यूज केस, राइट? आई विल गिव यू यूज केस ऑफ ए इलेक्ट्रिक बेस्ड राइड हेलिंग कंपनी दैट वी आर वर्किंग विद टू इम्प्लीमेंट सपोर्ट फॉर दैट. द यूज केस इज कि यू बुक ए राइड ऑन एयरपोर्ट or you book a ride, right? And the ride is very cheap compared to normal electric vehicles, probably 50% cheap. So the use case is कि that अभी मेरे पास सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं जिनका सिर्फ यही काम है कि बंदे ने जब चैट पे रिक्वेस्ट किया तो उनका क्वेश्चन हैंडल करना. व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स यूज केस यहाँ पे? इफ यू सी कि द यूज केसेस की, मैंने बोला सिंपल, मैं राइड में बैठा हूँ, मेरे को दिल्ली से निकला, मुझे कहीं जाना है, या लेट्स से मैं एयरपोर्ट से निकला, अब मेरे को कोरमंगला जाना है. रास्ते में ये किसी दोस्त का फोन आया कि यार एक काम कर, ऐसे सामने रुक जाओ 5 मिनट के लिए. नो, दैट राइड इज बुक्ड फ्रॉम एयरपोर्ट टू कोरमंगला. आई नीड टू स्टॉप इन HSR. सिंपल स्टॉप ऐड करना है. मैंने सपोर्ट पे जाकर बोला कि यार मैं जाऊंगा ऐप के अंदर, तो मुझे ऑप्शन नहीं मिलता ऐड करने का, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी वेरी कॉन्स्टेंट ऑन फ्यूल. वो ऐसा पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल नहीं भरा सकते, तो वो डायरेक्टली राइड चेंज करने का ऑप्शन मोस्टली नहीं देना चाहते. तो बट यू कैन रीच आउट टू सपोर्ट एंड आस्क फॉर इट, मुझे चेंज करना था, तो दे विल कंसीडर योर यूज केस. चलो ठीक है. तो मेरे को लेट्स से HSR में रुकना था, मैंने सपोर्ट को बोला कि भैया मुझे HSR में रुकना है. तो बंदा क्या क्या करेगा? सबसे पहले चेक करेगा कि आपका अकाउंट कौन सा है, आपका राइड कौन सा है, उस राइड में व्हीकल कौन सा यूज़ हो रहा है, उस व्हीकल की बैटरी कितनी है, वो जो गाड़ी बंदा चला रहा है उसकी शिफ्ट कितनी है, फिर जो बंदा जहाँ जा रहा है अगर आपने राइड एक्स्ट्रा ऐड कर दी तो उसका किलोमीटर कितना होने वाला है वापस टू गो टू द बेस. ये सब अगर चेक्स हैं तब जाकर बोलेगा कि हाँ आपका राइड मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ. या तो आप राइड 1 घंटे के एक्सटेंड कर दो, एक स्टॉप ऐड कर देता हूँ, या तो आप एक प्लान अपग्रेड कर लो कि डायरेक्टली आप पूरा दिन के लिए रेंटल ले लो. ये 5 स्टेप्स थे. अब ChatGPT को जाकर बोलोगे भाई मुझे राइड एक्सटेंड करना करके दे देगा? नहीं करेगा, बिकॉज इट डजंट नो एनी ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. द बॉट दैट वी हैव बिल्ड फॉर देम दैट डज एवरी सिंगल थिंग दैट यू आस्क फॉर, जो कल इंसान कर रहे थे. यू आस्क कि भैया मुझे राइड एक्सटेंड करनी है, इट विल से ओके सर लेट मी वेरीफाई योर अकाउंट. इट विल वेरीफाई योर अकाउंट कि अकाउंट आपका वैलिड है कि नहीं है. देन इट विल फाइंड आउट द राइड दैट यू आर करंटली ऑन. Then based on the ride that you are on, it will find the vehicle that is being used. Then it will find the SOC of the vehicle, which is called your I think कि बैटरी कितना है बेसिकली व्हीकल के अंदर. बैटरी अगर 40% से ज़्यादा है
फिर वो चेक करेगा ड्राइवर कौन सा है, ड्राइवर की शिफ्ट कब स्टार्ट हुई थी, कब खत्म होने वाली है, फिर देखेगा कि जहाँ पे आपको जाना है उसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ऐड करने के बाद बैटरी लाइफ कितनी बचेगी। आफ्टर थिंग ऑल दोस कैलकुलेशन विल से सर आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको सिंपल सा यूज केस है कि आपको यहाँ जाना था, ड्राइवर ने आपको कहीं गलत जगह पर उतार दिया एंड आप बोलोगे कि भैया एक काम कर, मेरे को यहाँ के बदले यहाँ पर लेके चल। वहाँ पे भी 5-6 अलग अलग फ्लोज होते हैं कि मुझे चेक करना है कि डिस्टेंस कितना है, आपका करंट लोकेशन कितना है, आप सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, आई कैन एक्चुअली कैलकुलेट राइट, मैं रिफंड ले सकता हूँ। सिंपल से यूज केसेस है जी, जो अभी इंसान करते हैं। अनदर कंपनी आई विल कॉल इट की इज ए बिगेस्ट फर्नीचर रेंटल एंड फर्नीचर सेलर्स इन द कंट्री। दे डू फर्नीचर रेंटल एंड सेलिंग, ये रेंटल फर्नीचर देते हैं। ऑन गिवन डे दे हैव अराउंड 1000 डिलीवरी शेड्यूल फॉर इंडिया। अभी वो साबुन या कुछ छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक नहीं बेच रहा कि वो जाके गेट पे दे देगा। फॉर देम टू डिलीवर ए ऑर्डर दे हैव टू एक्चुअली आस्क द कस्टमर कि भैया आप घर पे हो क्या, घर पे हो तो कितने बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे नहीं, आज नहीं हूँ, कल आ जाऊँगा। सो फॉर बिफोर एवरी डिलीवरी दे हैव टू मेक अ फोन कॉल एंड आस्क द कस्टमर कि भैया आप घर पे हो क्या। नाउ इसमें इंटेलिजेंस क्या है इंसान का, कुछ इंटेलिजेंस है क्या जो बंदा कॉल कर रहा है? लिटरली फोन करके पूछना है जी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके लिए 300 लोग बैठे हैं जो पर दिन फ़ोन करते हैं कि भैया आपका क्या हुआ नहीं हुआ। ये हमारा बहुत आराम से कर देता है। सिंपल यूज केस है कि जितनी डिलीवरी शेड्यूल है दिन की, उसका हमने डिलीवरी लिया, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन लिया, एक कॉल ट्रिगर किया कस्टमर को एंड कस्टमर को कॉल ट्रिगर करने के बाद कस्टमर ने जो भी बोला उसके ऊपर हमने एनालिसिस की कि कस्टमर ने कब का टाइम बोला है, वो एनालिसिस लेकर उसका सिस्टम अपडेट कर दिया। 1 मिनट लगा हमको करने के लिए, ऑटोमेटेड है। कस्टमर अगर इंसान ने फ़ोन किया, कस्टमर बोला कि मैं बिजी हूँ 5 मिनट बाद फ़ोन करना, तो बंदा भूल जाएगा। बॉट नहीं भूलता, 5 मिनट बाद फ़ोन करता है कि साहब ने बोला था 5 मिनट बाद फ़ोन करूँगा, हो गया, काम खत्म हो गया। सो दिस इंटायर फ्लो इज कम्प्लीटली ऑटोमेटेड बाय एआई, विच इज़ अ वेरी गुड यूज केस टू रिप्लेस द ह्यूमन एजेंट्स जॉब। अभी जो बंदे हैं या तो वो कुछ और कर लेंगे जहाँ पे एक्चुअल टाइम लगता है कि डिलीवरी आज कितनी है, कितनी डिलीवरी डिले हो गई, डिले क्यों हो गई, हो सकता है डिलीवरी बॉय ज़्यादा लगा दे, जो पैसा मैंने सेव किया उनका इन द सपोर्ट, हो सकता है उतने वो डिलीवरी बॉय एक्स्ट्रा हायर कर ले, तो दे विल बी एबल टू डू बेटर डिलीवरीज, सेल फास्टर। See, right now the only way they are able to deliver is कि 3 दिन में एक बार हो पाता है, let's say कि 3 दिन बाद हो पाता है जी। If they put 300 more delivery boys, हो सकता है वो लोग एक दिन में डिलीवरी कर दे। That improves consumers' life. At the end of the day, that improves consumers' life ना। जो बंदा पहले सपोर्ट में थे अभी डिलीवरी करेगा, but that is a more task जो ह्यूमन को करने के लिए इजी होना चाहिए। Correct. Very good use case for AI. Another example I will give you, probably the biggest e-commerce platform I would say, call it, right? देयर यूज केसेस की बंदे फ़ोन, इंडिया में लोग हैं उनको कुछ काम नहीं है, फ़ोन करेंगे भाई मेरा ऑर्डर कब आएगा। मैंने भी किया है, सब करते हैं कि ऑर्डर प्लेस किया तो मुझे अभी चाहिए एंड ऑर्डर डिले होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना वो कुछ कर सकता है ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ऑर्डर डिलेज होते हैं क्यों? बिकॉज जो बंदा डिलीवरी जो फील्ड पे बंदे हैं वो कम है। 1 person हैज़ टू डू 20, 25, 50 डिलीवरीज इन अ डे, तो वहाँ पर डिलेज होती है कि मैंने बोला था आज हो जाएगा, आज नहीं हुआ, 2 दिन बाद हुआ, बारिश हो गई, पानी हो गया, वेयर हाउस बंद हो गया, रोड क्लोज हो गया, नेता आ गया, 500 रीजन से इसकी वजह से डिलीवरी डिले होती है। मैं ई कॉमर्स कंपनी चलाता हूँ, मुझे पता है डिलीवरी क्यों डिले होती है। वहाँ पे बंदे फोन करके पूछेंगे सर मेरा ऑर्डर कहाँ है। इसमें जो बंदा सपोर्ट पे बैठा है वो कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कुछ कर सकता है क्या? अब उसको कितना भी गाली दे दो कुछ कर पाएगा? द ओनली थिंग ही कैन टेल यू इज कि ही विल लुक एट द सिस्टम, ही विल फाइंड आउट कि कहाँ पे डिलीवरी डिले हुआ है एंड बेस्ड ऑन दैट ही विल टेल द कस्टमर कि सर आप टेंशन ना लो, मैं ट्राई करूंगा, ये वो ही कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता जी। इसमें स्टेप्स क्या है? आपने फ़ोन किया, सर मैंने आपसे कुछ तो मंगाया था, एक मिक्सर मंगाया था, अभी तक नहीं पहुँचा, बहुत अर्जेंट है। ठीक है सर, ऑर्डर नंबर बताइए। ऑर्डर नंबर पूछा उसने, ऑर्डर नंबर उसको याद है कि ऑर्डर क्या क्या होता है? उस जो बंदे ने फोन उठाया उसको हर एक ऑर्डर का नंबर याद है क्या? बिल्कुल भी नहीं याद, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता जी। वो क्या करेगा? ऑर्डर नंबर लेके किसी सिस्टम में डालेगा, मेक सेंस जी। सिस्टम में डालने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये ऑर्डर में ये फलाना भाई साहब हैं, इन्होंने कलकत्ता से ऑर्डर किया था, 3 आइटम ऑर्डर किए थे, तीनों आइटम के निकल चुके हैं डिलीवरी के लिए, बट इनका जो वेयर हाउस है उस वेयर हाउस में बाढ़ की वजह से व्हाटएवर रीजन 1 दिन का डिले आ गया है, वो लिखा होता है। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक नहीं पहुंची या कस्टमर वैसे ही फिर भी फोन करके गाली देना चाहता है, व्हाटएवर रीजन, उसको वो इन्फॉर्मेशन लेके इंटरप्रेट करना है उसको एंड इन अ लैंग्वेज दैट इज प्री डिफाइंड कस्टमर को बताना है। इसमें उसकी इंटेलिजेंस क्या थी? मतलब मैनुअल वर्क है पूरा ये। जब आपने फोन किया उसने बोला हेलो थैंक यू फॉर कॉलिंग व्हाटएवर, वो जो लाइन पहली लाइन बोली वो लाइन उसने अपना दिमाग लगा के बोला था क्या? नहीं। वो लाइन किसने डिफाइन की थी? ऑटोमेटेड लाइन किसी सीनियर ने डिफाइन कर रखी। सो व्हेन यू कॉल ए कस्टमर सपोर्ट कंपनी, द इंट्रोडक्शन दैट गाय गिव्स, इज दैट इंट्रोडक्शन उसका खुद का है क्या? नहीं, वो तो पहले से डिफाइन होती है जी। जब इंसान अपना नाम तक खुद तो नहीं बोल सकता तो काहे का इंसान है? समझ लो, इट्स अ फंडामेंटल आई पेन्स टू सी। जब मैं देखता हूँ राइट, व्हेन आई वर्क विद, आई एम ट्राइंग टू वर्क विद सपोर्ट अ लॉट दिस डेज, मुझे दुख होता है भाई तूने एक इंसान बैठा रखा है जो अपना नाम तक खुद से नहीं बोल सकता, फिर क्या पॉइंट है उसकी इंसानियत का?
तो मैं बोलता हूँ मेरा रोबोट लगाते हो तो वही काम गधा मजदूरी करनी है ना, मेरा रोबोट तेरे से अच्छे से करके देगा, इन लोगों को अच्छा काम दो कुछ तो करने के लिए। अभी अपना नाम तो नहीं बोल पाया बंदा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद अपने बोला अपने सिस्टम में देख लिया जो भी देख लिया, उसके बाद वही बोलना कि सर आपका यहाँ पे डिफिकल्ट था। अभी होता क्या है कि मैनेजर ने देखा कि सबको अगर मैं फ्री हैंड दे दूंगा तो सब लोग अपने अपने हिसाब से कस्टमर से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करने लगते हैं अपने अपने भाषा में, तो उन्होंने उसका भी लैंग्वेज फिक्स कर रखा है कि वो जो रिप्लाई करेगा चैट पे या कॉल पे वो भी फिक्स्ड है कि अगर डिलीवरी डिलीड है तो इसी वजह से ये बोलना है, ये बोलना है। फिर कस्टमर कुछ भी बोल ले, कुछ नहीं कर सकता बंदा जी। यही करना है तो मेरा सिस्टम, आप बोलो सिस्टम ने जब आपने कॉल किया तो उसको पहले से ही पता है आपका ऑर्डर कौन सा है, वो खुद ही पूछ लेगा इसमें से कौन सा ऑर्डर के बारे में बात करो बताओ आपको, एंड बोलेगा ठीक है ये ऑर्डर है तो इस ऑर्डर में कौन से इसके लिए हेल्प करना चाह रहे थे बताओ आपको, तो बोलेगा हाँ ये हेल्प करना चाह रहा था मैं, तो ठीक है ये ऑर्डर आपका मैंने चेक कर लिया है, पुणे वेयरहाउस में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, बाढ़ की वजह से 2 दिन डिले हो गया है, हम ट्राई करेंगे करने का। फिर भी अगर कस्टमर ने बहुत इंसिस्ट किया तो बंदा एक टिकट रेज कर देगा डिलीवरी टीम को कि सर ये ऑर्डर थोड़ा अर्जेंट है देख लीजिए, इससे तो कुछ नहीं कर सकता, डन। ऐसे दिन के 1 लाख कॉल आते हैं, 5,000-6,000 लोग बस कॉल उठाने के लिए बैठे हैं जो वही करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है गलत है, ऑल आई एम सेइंग इज कि दिस इज अ टास्क दैट इज नॉट वर्थी फॉर ह्यूमंस। बिल्कुल सही। यू टेक इट अवे फ्रॉम ह्यूमंस एंड यू गेट देम टू डू समथिंग मोर बेटर, कि भाई तू फिगर आउट करके ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि डिलीवरी टाइम पे कैसे होनी चाहिए, कहाँ पे डिले हो रहा है वो निकाल के दे, ये सब करके दे। कस्टमर से बात कर, फीडबैक ले, प्रोडक्ट का फीडबैक ले, प्रोडक्ट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो सब काम कर। अगर एक बंदा फोन उठा के कस्टमर से बात ही करना है तो ऐसी चीज़ें बात करना जहाँ पे एक्चुअल बिजनेस कुछ वैल्यू इंप्रूव हो सकती है, या कस्टमर को फोन करके पूछ ले कि सर आपने लास्ट मंथ में मेरे से डायपर लिया था तो आपको तो डायपर इस मंथ भी चाहिए, तो आपके लिए मैं डायपर ऑर्डर कर दूँ क्या? सिंपल यूज केस जी। कस्टमर का भला हो रहा है, कंपनी का भला हो रहा है, एम्प्लॉय का भला हो रहा है, सबका भला हो रहा है जी, बट उसको गधा मजदूरी वाला काम नहीं करना। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। अभी ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट फॉर एनी कंपनी, बिकॉज इसमें बहुत सारे न्यूएंसेस है। द एआई हैज टू वर्क वेरी क्लोजली विद द सिस्टम्स दैट दोस कंपनी ऑलरेडी हैव इन प्लेस। ये जाके चैट जीपीटी नहीं करने वाला, करेक्ट, someone has to do it. If they don't do it, companies will not get the benefit of AI. फिर वो हाइप रह जाएगा, फिर कुछ होगा नहीं। So we are the people who are building the layers on top on those AIs कि भाई ऐसा होना चाहिए। अब इसमें like I said, chat हम लोग कर दिया। Voice is again another use case जहाँ पे इंडिया के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कुछ कंपनीज है यूएस में जो वॉइस पे काफी अच्छा काम करती है। विस्पर मॉडल है, ओपनएआई का यहाँ इंडिया में भाषनी मॉडल है। हाँ, सो विस्पर जो है, विस्पर इज योर स्पीच टू सॉरी अपना स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल जी, कि आपने जो बोला उसको टेक्स्ट में बना कर दे देगा। दैट मॉडल वर्क्स फाइन, बट एक तो उसकी लेटेंसी काफी ज्यादा होती है। व्हेन एस लेटेंसी, जब आपने कुछ बोला तो गेट द रिस्पॉन्स इट विल टेक 1.5 सेकंड्स, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। देन यू हैव टू टेक दैट पार्ट, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ मैं तो आवाज में बोल रहा हूँ, मेरा ऑडियो बाइट्स है। That audio bytes LLM cannot understand on its own. जी. तो Whisper, like you said, right? Whisper will convert that audio bytes into actual text. जी. You take that text, you send it back to LLM. कौन सा कैसे figure out करते हो next कौन सा LLM use करो? So LLM again, there are lot of LLM models, right? So you have GPT का 3.5 Turbo, 4 GPT-4, 4o, 4o Mini. I will give you the use case for all of them. 3.5 is very good at text generation tasks. जहाँ पे reasoning नहीं है, बस आपको कुछ करवाना है, तो वहाँ पे वेरी फास्ट, वेरी चीप एंड डज लॉट ऑफ थिंग्स वेल, बट इट हैव वेरी लो रीजनिंग कैपेबिलिटीज, बिकॉज़ अ वेरी स्मॉल मॉडल। हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब आपने पहली बार मेरे साथ ऑनबोर्ड किया, जब आपने पहली बार ऑनबोर्ड किया कस्टमर्स को, तो वी हैव टू क्रॉल द एंटायर वेबसाइट। 500 पेजेस है, 600 पेजेस हैं, टू नो अबाउट द कंपनी। हम प्रोएक्टिव भी कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको पूरा इनरोल किया तो आई हैव द वेबसाइट होम पेज। इफ आई क्रॉल द एंटायर वेबसाइट इंटायरली ऑन माई ओन, आई नो लॉट अबाउट द कंपनी पहले से। तो जब जाके बंदा चैट पे आके पूछता है कुछ कंपनी के बारे में, तो सब कुछ पहले से पता है जी। तो वहाँ पे अभी अगर मैं GPT-4 यूज करूंगा तो मैं कॉस्ट टू इनबोर्ड वन कस्टमर विल गो टू डबल डिजिट डॉलर्स, $20, $25 चला जाएगा। उतना मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है। मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे 3.5 यूज करता हूँ। उसको क्या काम है, ये पेज है, इसका मेरे को एक टेक्सचुअल समरी बना के दे दे। 3.5 टर्बो डज ब्यूटीफुली वेल देयर, बिकॉज उसको कुछ करना नहीं। उसको मैंने सोर्स दिया विच इज द HTML ऑफ द पेज, उसको बोला मुझे एक टेक्स्ट आउटपुट बना के दे दे, काफी अच्छा बना के दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और सस्ता भी है 4o से, क्योंकि हमें उतना ही कॉस्ट यूज करना चाहिए जितनी जरूरत है। कॉस्ट कटिंग। देन कम्स द नेक्स्ट मॉडल विच इज GPT-4। GPT-4 इज अब तक का सबसे एडवांस मॉडल है। रीजनिंग में काफी अच्छा है, सब कुछ काफी अच्छा है। यू गिव इट एनी कॉम्प्लेक्स टास्क, इट विल डू इट रियली वेल। If you give him the flow that I spoke about, right, कि इसको 10 चीजें चेक करके बतानी होती है, राइट, आप एक्सटेंड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये फ्लो 3.5 टर्बो नहीं कर पाएगा। इसकी फंक्शन कॉलिंग की कोई अच्छी नहीं है। फंक्शन कॉलिंग बेसिकली मेकिंग API calls to fetch all those data, right? For example, when I'm saying कि मुझे राइट एक्सटेंड करनी है या एक स्टॉप ऐड करना है, तो those 4-5 details the API doesn't have, the AI doesn't have.
निकालने के बाद राइट में से जो मेरे को उसकी व्हीकल की आईडी मिली, उस आईडी की डिटेल निकालनी है, उस डिटेल की सबसे ड्राइवर निकालनी है, फिर उसका बैटरी चेक करना है, फिर कैलकुलेशन करना है कि बैटरी में इतनी पावर है क्या कि मैं 20 किलोमीटर चला सकता हूँ. ऑल दिस कैलकुलेशन, फंक्शन कॉलिंग एंड एक्सटर्नल कॉलिंग वेरी एक्यूरेटली GPT-4 डज. रीजनिंग बहुत अच्छी करता है. Really well does. But it's very expensive and very slow. जी. 4 is very expensive, very slow. So GPT-4 is a model that is fast, cheap and does renewal. तो उन्होंने 3.5 and 4 के बीच का एक मॉडल निकाला which is your 4O. जी. Not that good in terms of accuracy. लोग बोले कुछ भी बोले, but my personal experience is 4O is still I would say less reliable in reasoning compared to 4, but it does the job well 90% of the time. तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा चल जाता है. फिर इवन 4 में इंस्ट्रक्शन काफ़ी लंबे देने पड़ते हैं कि एग्जांपल्स देने पड़ते हैं टू गेट इट टू डू व्हाट इट वांट. देन यू हैव ऑन द अदर हैंड यू हैव एंथ्रोपिक का क्लॉडी 3.5 Sonnet that beats GPT-4o in every single metric that you can throw it. So जब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है तो वी सेंड इट टू GPT-4 सॉरी अपना क्लॉडी 3.5 Sonnet. Okay. And that does reasoning well, beautifully well. अगर आई हैव सीन द केसेस जहाँ पे अगर उसने कोई API कॉल मारा, API कॉल फट गया, तो ऑन इट्स ओन इज एबल टू फिगर आउट कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एंड टेल इट टू द कस्टमर कि ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, एंड दैट डज इट रियली वेल. सो लाइक आई सेड, ये चालू हो गया. नाउ हाउ वी डिसाइड कि मुझे कौन सा मॉडल यूज़ करना है. मैं अगर हर एक मॉडल में GPT-4o यूज़ करूँगा, जब मेरे पास कोई कस्टमर आता है चैट करने के लिए, तो वो तो हाई से स्टार्ट करता है एंड गोज की मेरे को राइट एक्सटेंड करनी है. दैट इज ए कॉम्प्लेक्सिटी लेवल फ्रॉम 0 to 100. If I use high at all time GPT-4, my cost is too high. इंडिया में इंसान 2 रुपये पर मिनट पे काम करते हैं, विच इज़ द फैक्ट. मैं अगर उतना कॉस्ट दूंगा तो लोग यूज़ नहीं करेंगे. तो मैं क्या करता हूँ, मुझे कॉस्ट बचानी है, तो व्हेन द फर्स्ट मैसेज कम्स फ्रॉम द कस्टमर इन रियल टाइम आई हैव टू फिगर आउट कि कौन सा मॉडल इसके लिए सुटेबल है. अगर कस्टमर ने बस हाई बोला है तो डू आई नीड GPT-4 यहाँ पे, द आंसर इज नो. डू आई नीड क्लॉडी 3.5 Sonnet यहाँ पे, द आंसर इज नो. सो आई विल सेंड इट टू 3.5 जी कि भाई हाई का रिप्लाई कर देना, वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है. द मोमेंट वो कौन सा मॉडल पर जाएगा उसके लिए हमने एक सेल्फ होस्टेड मॉडल डाल रखा है, मिस्ट्रल का सेल्फ होस्टेड डॉटर डाल रखा है कि उसका एक ही काम है कि तू बस बता कि किधर जाना है, तू कुछ मत कर, तू बस बता कि कौन सा मॉडल इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है. ओह, सो मिस्ट्रॉल फिगर आउट कर देता है. आपको पढ़ के कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं है कि ये कैलकुलेशन वाला टास्क है. हाई कुड बी इन एनी लैंग्वेज, राइट? जी. एंड हाई कुड बी नॉट जस्ट हाई हेलो भाई, कुछ भी हो सकता है व्हिच यू डोंट नो. तो मुझे हाई के पीछे का इंटेंट निकालना है एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू फिगर आउट कि कौन सा मॉडल उसके लिए बेस्ट है. मिस्ट्रॉल फिगर आउट करता है वो बस उसका इतना ही काम है, फिगर आउट करके बता देगा कि भाई 3.5 पे जाएगा या 4 पे जाएगा या डायरेक्टली मुझे 3.5 Sonnet पे भेजना है. जैसे उसने बता दिया, द सिस्टम विल फिगर आउट कौन सा मॉडल पे जाना है, वहाँ से आंसर लेके आया एंड आंसर लेके डाल के दे दिया. दैट यूज केस वर्क्स परफेक्टली ब्यूटीफुली वेल फॉर आवर यूज केस. वहाँ पे मेरा बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स. आई एम नॉट यूजिंग जस्ट 3.5, आई एम नॉट यूजिंग जस्ट द 4 एट ऑल टाइम्स. आई एम ओनली यूजिंग द मॉडल दैट इज एब्सोल्युटली नीडेड टू डू दैट पे. फिर मॉडल के बाद उसमें आपका इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल आ गया, रैग वाला जो पाइपलाइन पूरा आ जाता है वो आ गया, फिर आपका फंक्शन कॉलिंग आ गया, फिर आपका लेटेंसी आ जाती है. जब वॉइस कॉल्स पे जाते हो तो लेटेंसी प्लेज ए मेजर रोल इन द रिस्पॉन्स टाइम कि हाउ आई एम एबल टू गेट लेस देन 1 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, तो वो सब आ जाता है. तो इंडिया के स्पीच के हिसाब से, क्योंकि ओपन एआई ने तो हर कंट्री का डेटा उठा के ट्रेन कर दिया है, इंडिया की स्पीच क्वालिटी के हिसाब से विच मॉडल यू थिंक इज गुड इनफ? इज विस्पर गुड इनफ या फिर जो भाषणी मॉडल है इंडिया का वो? सो सी द पब्लिक मॉडल्स, राइट? सो विस्पर इज गुड फॉर हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है, बट विस्पर लाइक आई सेड इज ओनली ए स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल. इट कैन नॉट आउटपुट ऑडियो रिलायबली. So when you are speaking, right, there is at least minimum three things involved. Actually, 4 things involved when you talk about a voice call, right? So in the voice call, you have speech to text, which is जो आप बोल रहे हो उसको convert करेगा. Whisper is one of the really good models there, right? But it's very slow. So in real time use cases, Whisper doesn't work. No company I know, हम भी use नहीं करते Whisper to convert speech to text in real time using Whisper, because Whisper is very slow model. There are a couple of third-party companies. DeepGram is one company that does it. Couple of more companies that do ASR. ASR is basically your automatic speech to speech recognition engine, or speech to text, whatever you call it. So ASR में DeepGram काफ़ी अच्छा latency है उनका, but again they are not based out of India, so there will always be around 200 millisecond का latency between what you are saying versus what they are able to detect. In India we have built an in-house model that works for our use case, जहाँ पे we have deployed model on our own servers जो चलता है. Once you have that speech which is your जो मैंने बोला उसका text बना के, then based on like I said, right, we have an engine that figures out कौन सा मॉडल को जाना है. मॉडल से रिस्पॉन्स आ गया, मॉडल से फुल रिस्पॉन्स आने में 3 से 4 सेकंड लगते हैं. If you wait for the full response, it will take 3 to 4 seconds.
तब तक आप बंदे को वेट नहीं कर सकते. नहीं. It looks like a walkie-talkie then. जी. So what you do, something called streaming. So pretty much every LLM have that streaming वाला functionality anyway, right? So streaming में क्या होता है कि the moment you send a reply, the model will start outputting tokens very very fast. Time to first token will be somewhere around 1 second पकड़ लो, या even 500-600 milliseconds. So once you give the question to the LLM, in 500-600 milliseconds you will get the answer. At least the first few words. Now वो word जो आया वो तो audio नहीं आया, वो तो text आया था. You have to take that text and convert into audio again. And that audio is the one that the customer will hear. There you need a model that is very very good. Because यहाँ पे robotic sound करेगा तो लोग लेंगे नहीं, इंसान बना दिया तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है. So now here you have to work on a model that is very very good. यहाँ पे couple of companies have, for example, 11 Labs. 11 Labs is a US based company. I don't know कहाँ पे based है, but mostly they have very good US का support. 11 Labs is the best in audio, which is your text to speech. There is no other company that does text to speech better than 11 Labs. Simply it doesn't exist. But the cost is around 10 rupees per minute of audio. काफी ज्यादा है. But उसका audio quality you will see, you will not. मैंने जितने demos आज तक post किए हैं, right? I will send you the links. You can include in the video. It looks as real as a human being. Literally as real as a human being. You won't be able to differentiate कि ये इंसान है कि नहीं है. So वहाँ पे the audio quality is really good. So what do? Will you be able to pay 10 rupees per minute for the audio? The answer is no. यहाँ पे इंसान 2 रुपये पर मिनट पे कॉल सेंटर में काम करता है. एक कॉल सेंटर का कॉल का जो अगर आप देखोगे तो 2 से 3 रुपये है पर मिनट का, एक टिपिकल कॉल सेंटर. जी. तो it simply doesn't work. So what do? Plus 11 Labs can only do Hindi so much. इंडिया में मराठी है, कन्नड़ है, तमिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चलता नहीं है. तो इवन फॉर हिंदी द कॉस्ट इज सो मच कंसर्न. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो वी हैव टू ट्रेन ए मॉडल फ्रॉम स्क्रैच इन इंडिया टू डू द text to speech वाला part. So we did that almost in the last 2 months. We have a model in place that can do text to speech really really well. तो आपने इन हाउस दुकान में यहाँ पे बनाया? Yes. In a team of just 30, less than 30. हाँ मतलब है. क्या बात है. एंड आपने डेटा सेंटर्स AWS के यूज किए होंगे या? We don't use AWS, but ठीक है. चलो आपने मतलब GPUs खुद खरीदे या? नहीं, rental. GPUs rental. So GPU what we have done is कि a very close friend of mine, right? मेरे जो पुराने सबसे पहले बॉस थे मेरे जेनिथ में, राइट? सो दे हैव a company that does this GPU का orchestration. तो उनको सर्वर्स में पहले से इंटरेस्ट था. तो व्हाट दे हैव बिल्ड इज कि दे हैव बिल्ड इंजन दैट कैन फाइंड GPUs फॉर यू चीपेस्ट पॉसिबल एनीवेयर ऑन द अर्थ. मुझे मॉडल ट्रेन करने के लिए इंडिया की जरूरत है क्या? इंडिया की नहीं, कहीं भी कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड कर सकते हो. ट्रेन करने के लिए चाहिए क्या? नहीं. सो व्हेन आई हैव अ ट्रेनिंग जॉब व्हाट आई डू इज आई सेंड इट टू हिम. हां. एंड हिज इंजन विल फिगर आउट कि सबसे सस्ता GPU अभी कहाँ मिल रहा है. निकाल लेगा, 10 कंबाइन किया, व्हाटएवर ड्रॉप करके मुझे मॉडल दे दिया. Then I run that model nearest to the customer, which is again in Bangalore. So Bangalore का data center we use from a company, but वहाँ पे we use GPUs. वहाँ पे see to run the model you don't need too much power. ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा पावर जाता है. ट्रेनिंग आई कैन डू एनीवेयर. सो वहाँ पे है. सो एंड GPU वी डोंट परचेज. उतना पैसा मैंने बोला ना, पैसा नहीं है. GPU परचेज करने का पैसा होता मैं LLM मॉडल बनाता होता बैठ के आस, बट नहीं है पैसा तो कोई बात नहीं. एंड उसमें करके पॉइंट भी नहीं है टू कम्पीट विद दोस कंपनीज. बट इन इंडिया देयर इज ए स्कोप जहाँ पे फॉर इंडिया स्पेसिफिक वॉइस मॉडल जो है that can come, someone can build cheaper. There is a scope. जी. Because वो कोई और नहीं बनाने वाला. मराठी बोलने वाले इतने ही कम लोग हैं ना कि for a company like 11 Labs for them to build a Marathi model उनके लिए priority नहीं है. Plus even if they build the cost that they have, that cost is simply not affordable for a country like India. तो वहाँ पे एक scope है कि हम एक बना सकते हैं model that can. And if I can build a model for language as complex as Hindi, Marathi, Kannada, then take that model to US, do it 1/5 of the price that they're doing, and you have a good revenue there. बिल्कुल. So that is the play. तो अभी इंडिया में that model that we have, right? So we are working with some of these companies to power their voice support. तो वहाँ पे चल रहा है. तो now once you have that model that will output the speech, you take that speech, then you stream the speech back to the customer. Whether it's a web call, whether it's a telephone call, whatever ये method the customer is calling from, it can be telephone call, कुछ भी हो सकता है. वहाँ से लेके आपने स्पीच को उधर भेज दिया. एंड वंस यू हैव द स्पीच, फिर अपने इंसान कैसा है, जब आप मेरे से बोल रहे हो, मैं बोल रहा था बीच में इंटरप्ट कर दिया. मैं बोल ही रहा था बीच में इंटरप्ट कर दिया. ये इंसान करते ही है. करेक्ट. चैट व्हाट्सएप पे कैसा इज 1 by 1. व्हाट्सएप इज लाइक वॉकी टॉकी. आपने बोला मैंने बोला, आपने बोला मैंने बोला, इजियर है. इवन चैट इज इजियर. आपने बोला मैंने बोला. इन वॉइस आप बोल रहे थे, मैंने बीच में बोला स्टार्ट कर दिया. इंटरप्शन हैज टू बी देयर. जी. तो हाउ डू यू इंप्लीमेंट इंटरप्शन डिटेक्शंस वहाँ पे कि जब आप बोल रहे थे तभी अपने बीच में बोलना बंद कर दिया. तो जैसे ही मैंने कुछ बोला तो आपको उसी टाइम पे उसको बोलते हैं वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन, VAD करके, कि हाउ डू यू डिटेक्ट कि कैसे इंसान ने बोलना शुरू किया, तो हाउ डू यू लोअर द वॉल्यूम एंड स्टॉप. एंड फिर मैंने, हो सकता है अभी इंसान है ना, मैंने बोला यार मेरे को एक ये चाहिए था, अभी यार पे रुक गया, बट यार का आंसर चाहिए क्या मेरे को? नहीं. नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए यार का. करेक्ट ना. मेरे को आंसर इसका चाहिए, मेरे को एक घर चाहिए था,
इसका आंसर चाहिए. तो हाउ डू यू फिगर आउट इन रियल टाइम कि यार जो था उसको इग्नोर करना है, अगले सवाल का वेट करना है, देन आंसर करना है. सो दिस इज वॉइस मॉडल इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. हाउ डू यू फिगर ऑल दोस आउट एंड देन आउटपुट ए कन्वर्सेशन दैट इज वेरी वेरी नेचुरल. तो वो है. So we are launching this entire thing on 15th August, I think this month. Where we will release all the things that everything that we have with a couple of customers that are also using it. So very excited. We are building it right now. Yeah, this AI model has so much scope. एक हर कंपनी को चाहिए. Absolutely. And इसी कारण like you know this 2024 year has been the year of profits for all the AI investments. आप Meta को देख लो. Meta का जो Llama model है and because of AI becoming so good, Instagram बहुत ज़्यादा एडिक्टिव बन गया है. उनके प्रॉफिट्स 22% इंक्रीज हुए हैं. माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ AI. उसके बाद गूगल के प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है. हर एक का इंक्रीज हो रहा है. एंड नेक्स्ट इज अस, राइट? Absolutely. So all these investments and profit that is coming, right, is mostly going on people who are building things. But that has to be used by people. If people don't use it, तो कोई पॉइंट नहीं बना के. जी. अगर माइक्रोसॉफ्ट का AI है, ओपन AI है, किसी का भी लामा का, लेट्स से लामा हो गया, लामा भी ऑल्सो यूज एट लॉट ऑफ प्लेसेस. ये सब अगर कोई यूज नहीं करेगा कोई पॉइंट नहीं है. जी. एंड वी आर द पीपल हु आर ब्रिंगिंग इट टू द एंड कंज्यूमर्स. करेक्ट. एक एंड कंज्यूमर एक लामा मॉडल से कितना ही इंटरेक्ट कर लेगा. जी. कितना ही इंटरेक्ट कर लोगे, आप सवाल ही पूछोगे ना. व्हाट आई डू इज आई ब्रिंग कॉन्टेक्स्ट. जी. मैंने एक डिवाइस का डेमो दिखाया था विच वॉज बेसिकली यू पुट अ डिवाइस एंड इट कैन हेल्प यू विथ वट एवर यू वांट. आप बोलोगे भैया मेरे को एक लेट्स से क्या कहते हैं चाय बनाना सिखा दो, तो चाय बनाना सिखा रहा है आपको हिंदी में, आपकी लैंग्वेज में. दैट इज अ वेरी वेरी बिग डील. दैट इज वो एक इंटरफेस हो गया आपके लिए. ऑल दोज थिंग्स विल स्टार्ट टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ AI बाय द कॉमन पीपल. दीज आर द पीपल हु विल कंज्यूम एंड स्टार्ट टू मेक मनी विच विल कम टू अस. विल कीप some part will give to the AI companies जिसका मॉडल्स यूज कर रहे हैं. सब मिला हो जाएगा. इन इंडिया इवन इफ यू सी राइट नाउ, राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ हेट लाइक यू राइटली सेड फॉर पीपल हु आर बिल्डिंग GPT wrappers. Lot of hate. I get that a lot. I was probably also some other person who used to think that way 2 years back. Probably I can think that way. But even now, there is a lot of hate. If you build something, the first question people will ask you, is it GPT wrapper? First question people are going to ask you, is it GPT? हाँ भाई है तो क्या हो गया? तो GPT डायरेक्टली यूज कर लेना. क्यों नहीं कर रहा? कर ले. किसने मना किया है करने? कर ले. नहीं कर रहा. Someone has to build the wrapper. At the end of the day, everything is a wrapper. पहले लोग डेटा सेंटर्स में खुद जाते थे. AWS आया. AWS क्या है? जिस क्लाउड मशीन के ऊपर रैपर है बस. इज ए डेटा सर्वर का रैपर है ना. जी. व्हाट इज द क्लाउड? इज ए सर्वर का रैपर लिटरली. करेक्ट. कंप्यूटर का रैपर. आप सर्वर डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर लेते? जो बंदे कमेंट कर रहे हैं, लेट्स से डेवलपर ही है या कोई भी बंदा है, वो डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर लेता? Why they need the AWS at the end of the day? What is this? Literally, जितना जो कुछ भी आप AWS डायरेक्टली कर सकते हो, वो आप खुद से कर सकते हो नहीं कर सकते हो. Everything you can do ना. करेक्ट. 4 VM बना के एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है ना, खुद नहीं कर सकते. VMware है ना, खुद कर सकते हो. या डिजिटल ओशन क्या है? डिजिटल ओशन आपने यूज किया है. करेक्ट. क्या है? क्लाउड कंप्यूटर्स. It's just an interface on top of the actual foundation, right? Correct. At the end of the day, everything is servers. सब कुछ तो सर्वर्स ही है. एक डेटा सेंटर है, उसके अंदर रैक्स लगे हैं, रैक्स के अंदर सर्वर्स हैं, सर्वर्स के अंदर हार्ड ड्राइव है, CPU है, रैम है, और कुछ है. The entire internet is just that. और कुछ है? यही है बस. लिटरली इतना ही है. और केबल्स लगे हुए, इतना ही है सब कुछ. डेटा सेंटर के ऊपर लोगों ने क्या बनाया? चलो ठीक है, डेटा सेंटर है, उसके ऊपर मैंने क्लाउड बना दिया. AWS बना. टुडे AWS इज ए बिलियन, आई डोंट नो कितना पैसा है उसके पास. बिलियन डॉलर कंपनी, राइट? ऑल क्लाउड कंपनीज है बिलियन डॉलर कंपनीज. एजूर की बात कर रहा हूँ. ऑल ऑफ देम आर लिटरली रैपर्स ऑन डेडिकेटेड सर्वर्स एट द एंड ऑफ द डे. फिर लोग बने जो उसके ऊपर भी रैपर बना के बेच रहे हैं. You take Vercel as example. Vercel, I'm not sure if you know. जी बिल्कुल पता है. Vercel is a wrapper on what? Cloud, right? उनका खुद का डेटा सेंटर है ना कुछ है उसका. उसको तो AWS का इवन फंक्शंस वो लैम्बडा यूज करता है. जी. आप यूज करते हो? क्यों यूज करते हो? मैं करता हूँ. Vercel सबसे ज्यादा आसान है. क्यों? आपको जो काम करने के लिए 5 घंटा लगने वाला था, वो काम लिटरली यू डू a git push and it will deploy and give you a link. जी. आपकी आउटकम क्या होनी चाहिए? एक लिंक जो चल रहा है, not the complexity that goes inside it. Yeah, you can build everything yourself also, but आपका काम क्या है? आपका काम है आपको एक आउटकम दिया कि भैया एक लैंडिंग पेज बना के चाहिए, या आपको एक एप्लीकेशन चाहिए. आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भैया ये लैंडिंग पेज हो गया. पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी आप खुद करोगे, किसी और से करोगे, कुछ फर्क पड़ता है? इफ यू आर यूजिंग ए क्लाउड रैपर, आई वुड कॉल इट, टू डिप्लॉय इट, कोई दिक्कत है उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं. उसने बस रैप तो नहीं किया, उसने पीछे अपनी 5 इंटेलिजेंस तो ऐड करी ना कि भैया जब आपने गिट पुश किया तो गिट पुश पे एक जॉब ट्रिगर होना चाहिए, जो जॉब आपके इमेज को बिल्ड करेगा, डिप्लॉय करेगा, हेल्थ चेक रन करेगा, आपको एक लिंक बना के कस्टम डोमेन कनेक्ट करेगा. ये तो वैल्यू ऐड उसका है. ये तो AWS का वैल्यू ऐड नहीं है ना, ये तो वैल्यू ऐड उसका है. करेक्ट. वो पैसे किस बात का ले रहा है? उससे वैल्यू ऐड का ले रहा है. इंटरनली ठीक है, होस्टिंग के लिए वो AWS ही यूज कर रहा है,
इवन मैं भी जब बना के दे रहा हूँ किसी कंपनी को बना के दे रहा हूँ अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है पीछे मेरे 5 LLM यूज़ हो रहे हैं कोई बात नहीं, बट मैंने जो अपनी वैल्यू ऐड दी है क्या, किसी कंपनी को सिर्फ LLM तो यूज़ नहीं करना, उसको समझना है कौन सा चैट चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल इन माई सॉफ्टवेयर राइट, आफ्टर एवरी मैसेज आई फिगर आउट जो मैसेज क्लाइंट ने दिया है, बॉट ने रिप्लाई किया है, जो कस्टमर ने बोला है वो किस बारे में बोल रहा है। इन रियल टाइम यू लुक एट द डैशबोर्ड एंड यू कैन टेल मेरी कंपनी में आज क्या चल रहा है जस्ट बेस्ड ऑन द कस्टमर चैट। अगर आपको रिफंड की प्रॉब्लम है, पेमेंट की प्रॉब्लम है, शिपमेंट की प्रॉब्लम है, फॉर एवरी प्रॉब्लम आफ्टर एवरी सिंगल मैसेज फ्रॉम द कस्टमर आई फिगर आउट इन रियल टाइम वो क्या था, आपको दिखाता हूँ मैं डैशबोर्ड पे, वो मेरा वैल्यू ऐड है ना। ये अगर आपको खुद करना है तो टाइम लगेगा जी। और आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपकी काम वो नहीं है, आप ई कॉमर्स कंपनी चलाते हो, बिल्डिंग दिस डैशबोर्ड्स, बिल्डिंग दिस AI इज नॉट योर वर्क, लेट मी डू इट बिकॉज मैं वही करता हूँ। आपको करना है करो यार, आई डोंट माइंड, आपके पास तो नहीं टाइम है यही सब करना है, आपकी कंपनी ई कॉमर्स में 500 चीज़ें फटी हुई है, फिर भी अगर आपको आकर AI बनाना है तो बनाओ, आई डोंट माइंड, बट वो करना चाहिए क्या? नहीं। The time I save by not building this myself, I put the time into building an AI company that is making me more money than I will ever make by building this myself. मैं बस इतना ही समझाता हूँ लोगों को, भाई ये आपका काम नहीं है, आपका काम क्या है, अपने कंपनी चलाना, आपका काम क्या है, कैब कंपनी चलाना, आपका काम क्या है, ई कॉमर्स कंपनी चलाना, अब वो चलाओ। सॉफ्टवेयर का बनाना मेरा काम है, वो मेरे को सबसे अच्छा ऐसा आता है, मेरे को बनाने दो। इसमें लोगों को समझ में आता है, हमको समझ में आता है, दैट्स व्हाई वी हैव क्लोज ऑल दिस डील्स राइट। पीपल पे अस lakhs of rupees a month to run this software. Couple of deals we have will be crores in a month. लोगों को समझ में आ रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है, हम लोग खुश हैं, पर ट्विटर पे बैठे लोगों को प्रॉब्लम है कि तुम AI रैप बिल्कुल सही भाई, तू बना ले, पैसे बनेंगे, बता रहा हूँ अगले 6 महीने में जितने AI रैपर बनने वाले हैं। इट्स लाइक बिल्डिंग एप्स फर्स्ट टाइम ऑन द iOS, इट्स लाइक बिल्डिंग एप्स ऑन प्ले स्टोर जी। इसमें भी इंजीनियरिंग लगती है, ऐसा नहीं कि सब बस GPT को बोल दिया बन जाता है, टाइम लगता है, मेहनत लगता है। जो वॉइस वाला पार्ट आई स्पोक अबाउट, जस्ट टू कॉम्प्लेक्स इवन फॉर पीपल टू फिगर आउट कि चलता कैसे है, टू कॉम्प्लेक्स। करके देखो, चैट बना के देखो क्या होता है, समझ में आएगा क्या होता है, यू विल लर्न अ थिंग और टू, करके देखो। आप बता सकते हो Llama 3 जो एक यूजर को लगता है कि फ्री है, मतलब हमारे लिए ओपन सोर्स है, हमारे लिए फ्री है, एंटरप्राइज के लिए पेड है, आप क्या सोचते हो कि आपके लिए सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कौन सा मॉडल पड़ता है? So right now, when you see Llama, right, we are experimenting with the Llama right now a lot because cost again I like I said right. Initially इतना concern नहीं था, but right now cost is a major concern for us also. So I am experimenting with Llama as well. Llama can do good, but इसमें fine tuning में काफ़ी मेहनत लग रही है. But even then, for context which is non-India, is Llama is doing pretty well. For most of the questions it can answer really well. Function calling इतना accurate नहीं है. But after a little bit of fine tuning with the question sets that we have, what we do is कि we take the answers from GPT. Let's say किसी customer का 1 महीने का GPT data है, which was run on GPT now. I can take that, give it the entire question history to the Llama model, fine tune it, then the Llama model will work perfectly fine for the customer that I did it for. तो वहाँ पे चल रहा है. So one use case that I'm still exploring कि not yet live probably 1-2 हफ्ते या 1 महीने में live होगा कि we will have a basically Llama is a very cost effective model for us. But Llama cannot output Hindi well. Llama cannot output Marathi, Kannada, all those things well. So what we're doing is कि we will use Mistral for the routing part, like I said. Mistral will send most queries to Llama first. Llama will figure out the answer because Llama can figure out answers in English pretty well. उसके बाद जो उसका outcome आएगा, that outcome I will take, and if the outcome was supposed to be in Marathi, I will ask GPT-4o to just do the translation part. मैं तो बस उसको ट्रांसलेट कर दे one sentence को from this English to this, जो ट्रांसलेशन आया ट्रांसलेशन आई विल सेंड बैक टू द यूजर. देन इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. बट राइट नाउ अभी क्या होता है कि व्हेन आई एम बिल्डिंग चैट एप्लीकेशन फॉर एनी कस्टमर, राइट, द इंस्ट्रक्शन सेट इज वेरी लार्ज. देन यू हैव टू अटैच लॉट ऑफ टूल्स, सो द कॉन्टेक्स्ट लेंथ इज प्रीटी लार्ज. भले ही मॉडल विल सपोर्ट 128 के कॉन्टेक्स्ट, मोस्ट मॉडल सपोर्ट, बट 128 के कॉस्ट कॉन्टेक्स्ट इज अराउंड 50 cents, 40 रुपया होता है फॉर one message. जी. And in a conversation, generally there is a back and forth 5 to 6 times between the customer and the bot anyway. You look at the cost just for the model, just too much. वो नहीं हो सकता. So वहाँ पे उतना तो context हम I cannot allow the context to grow as much as उतना हो नहीं सकता. So we have to then reduce the context to the lowest possible. फिर lowest context छोटा करोगे तो उसकी जो understanding है about the company वो कम होती जाती है. For example, for a single use case, right? एक कंपनी, लेट्स से फर्नीचर रेंटल कंपनी, दे हैव एटलीस्ट 25 डिफरेंट फ्लोज कि रिफंड के केस में ये करना है, पेमेंट के फ्लो केस में ये करना है, ऑर्डर डिलीवरी नहीं हुआ इस केस में ये करना है, लेट्स से कस्टमर को फर्नीचर ब्रोकन मिला तो ये करना है, ड्राइवर ने फोन नहीं उठाया तो ये करना है, ड्राइवर रूट था तो ये करना है. ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू टेल द मॉडल बिकॉज वी डोंट नो इन एडवांस कस्टमर ने पूछा क्या है, तो वी हैव टू टेल द मॉडल एवरीथिंग. ये सारे केसेस है, तुमके पास जो भी सवाल आएगा आंसर कर देना. द मोमेंट यू स्टार्ट टू इंक्रीज दैट, द कॉन्टेक्स्ट लिमिट्स इंक्रीजेस एंड योर कॉस्ट स्टार्ट टू इंक्रीज. वहाँ पे Llama कैन डू इट कॉस्ट इफेक्टिवली. बट कस्टमर अगर मराठी में पूछ लिया तो Llama को समझ में नहीं आएगा, प्लस Llama आंसर नहीं कर पाएगा.
तो कस्टमर ने जो पूछा था उसको मैंने ट्रांसलेट कर लिया 4 से या 3.5 से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. Very cost effective because literally the only thing I had to send to the model was the word and the sentence and कि भैया तू ट्रांसलेट कर दे. ट्रांसलेट करके इसने वापस भेज दिया. I take that and I will give to the then I give the Llama model the question in English. Llama model will give the answer back in English. टूल कॉल करना, टूल कॉल हमेशा इंग्लिश में ही होने वाला है बिकॉज ऑल द APIs आर ओनली मोस्टली इंग्लिश. जो भी करना था कर लिया उसने, उसके बाद उसने आंसर दिया उसको हिंदी में वापस से लामा मैंने फोटो को बोला लॉग टू फोटो आई एम सेंडिंग ओनली लिटिल थिंग. सो जहाँ पे आई वाज सेंडिंग लेट्स से 8000 टोकन्स आई एम सेंडिंग प्रॉब्ली 300 टोकन्स बट द कस्टमर इज गेटिंग सेम क्वालिटी आंसर. ये छोटे छोटे कस्टमर में फर्क नहीं पड़ता बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लैक्स ऑफ कस्टमर चैट्स इन अ डे वहाँ पे दीज थिंग्स मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. सो ये सब भी तो करना, समवन हैज टू डू इट. जीपीटी तो नहीं करने वाला, बैठ को तो बोलेगा मेरा यूज कर लो. एंड दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसका बहुत स्कोप है. मतलब यूएस में सिलिकॉन वैली में हाईएस्ट जॉब्स करंटली कुछ कंपनीज में प्रॉम्प्ट इंजीनियर की है एज कंपेयर टू अदर्स. एब्सोल्युटली. सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज बेसिकली कॉमन सेंस एंड पीपल विद कॉमन सेंस राइट नाउ can do lot better, not right now, in next couple of years. People with this common sense, right, can do lot better than people who are technically skilled. I was personally able to build the entire platform that we are going to release in flat, I think 2.5 days. Wow. I built the visual, I was able to visualize कि क्या बनाना है completely UI सब कुछ मस्त अच्छा सा बना के. Then I gave it to team कि भैया यहाँ से तुम कर लो, यही करना है, ऐसा तुमको भी ऐसा करना कर लो. विदाउट दैट आई हैड टू थिंक अबाउट एवरी सिंगल थिंग, डिपेंड ऑन डिजाइनर डिजाइन करेगा, फिर डेवलपर इंप्लीमेंट करेगा, फिर इंप्लीमेंट करने के बाद फ्लो समझ में आएगा, आपको आएगा ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा आएगा. आई वाज एबल टू डू एवरीथिंग विजुअली, आस्क द मॉडल टू ये चेंज कर दे, ये चेंज कर दे, ये चेंज कर दे. आई एबल टू गेट एवरीथिंग. सुमित माय को-फाउंडर इज एबल टू बिल्ड एवरीथिंग ही वांटेड टू बिल्ड. उसके पास डैशबोर्ड में कुछ दिख रहा है, उसको चेंज करना, ही इज एबल टू डू इट हिमसेल्फ डायरेक्टली. सो जस्ट बाय राइटिंग गुड प्रॉम्प्ट्स, which basically common sense की ऐसा होना चाहिए. तो people who have common sense, people who have creative, they have basically a genie. बोलते थे ना अलादीन का चिराग. जी. They have the अलादीन का चिराग that you can take and just get it to do whatever you want. I am able to personally do whatever I want. मुझे जो बनाना होता है मैं बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती. जो करना होता है कर लेता हूँ. When I am working with these companies, right, a large part of that is just prompt engineering. So let's say I onboard a customer, a very large customer, let's say in healthcare domain. They have customer chats from 3 years, 5 lakh 6 lakh chat customer का रिकॉर्ड है उनके पास. Someone has to go through the entire chat and tell the model कि करना क्या है कौन से केस में. That is literally writing prompts based on the data. Someone has to do it. And correct. A large part of implementing AI is just telling the model करना क्या है. Because model on its own will not work directly. Because उसको पता ही नहीं है. Let's say the use case is simple कि let's say they are a corporate insurance company. उसके कंपनी में एक कंपनी में 300 एम्प्लॉइज हैं, सबका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस दे दिया हम लोगों ने. एक बंदे को पॉलिसी नहीं मिली तो ही विल गो ऑन द चैट एंड से मेरे को पॉलिसी नहीं मिली. अभी इसका ये पॉलिसी आपने डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपने डायरेक्टली जीपीटी को बोल दिया, जीपीटी क्या बोलेगा? इसके 3-4 रीजन्स हो सकते हैं, आप अपने पॉलिसी वाले से कॉन्टैक्ट करिए, इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट करिए. वह बंदा इंश्योरेंस कंपनी को तो बोल रहा है. समझ लो, यू कैन नॉट टेक द जीपीटी डायरेक्टली एंड पुट इट टू हिम. यू कैन नॉट रैप जीपीटी एज इट इज एंड गिव इट टू द कस्टमर. वो चलेगा नहीं. कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है. उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं क्या करना है. इस केस में सबसे पहले काम क्या होगा, भाई बंदा कौन है वो निकाल, उस बंदे की पॉलिसी का है वो देख, फिर देख कि एचआर ने उसका पॉलिसी अपलोड किया कि नहीं किया. अगर एचआर ने उसकी पॉलिसी अपलोड नहीं करी तो कहाँ से मिलेगी? काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपना ईमेल आईडी पर्सनल दे देते हैं एंड फिर बोलते हैं मेरे को ईमेल नहीं मिला एंड पर्सनल आईडी उनको रिजेक्ट हो चुकी होती है एंड कंपनी आईडी पे उनको मेल नहीं आया तो दे आर लाइक क्यों नहीं आया. तो फिर वो बोलते हैं मेरे को ये दोनों मर्ज करनी है, मर्ज कर दो. जस्ट सिंपल थिंग्स. जी. बट ये सब रिकॉर्ड उनके पास चैट में तो है 5 साल से. ये सब करने के लिए उनके पास इंसान बैठे हुए अभी भी. Someone has to read through all those chats, figure out कि इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, write the prompts, give the context. Basically context is your either knowledge base. Knowledge base is what कि इस पॉलिसी के फीचर्स क्या क्या है. That GPT doesn't know. मैंने एक कॉर्पोरेट पॉलिसी ले रखी है, उस पॉलिसी का मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा पैर टूट गया एक्सीडेंट में, ये कवर्ड है कि नहीं है, जीपीटी को पता है क्या? नहीं पता. सो मैंने आस्क अबाउट कि मेरे पॉलिसी पे ये कवर्ड है कि नहीं है. सिंपल क्वेश्चन है. जी. जीपीटी को नहीं पता यार. मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस कंपनी के जितने पॉलिसीज हैं वो सबका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा कि ये बंदे जिस पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं वो पॉलिसी कौन सी है. वो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट 300 पेज का होता है, वो सारा का सारा मैं एक साथ जीपीटी को दे नहीं सकता. दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता. तो वहाँ पे मुझे उस डॉक्यूमेंट का सिर्फ वो पार्ट जो उसके क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट है निकाल के देना है जीपीटी को. वहाँ पे भी ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो मैंने लेट से पूछ लिया कि मेरे पॉलिसी का वैलिडिटी कितनी है, वो वैलिडिटी वर्ड तो 10 बार मेंशन है 10 अलग पेज पे. अगर मैंने 10 पेज निकाल के भेज दिया जीपीटी को तो चलेगा क्या? नहीं.
कॉन्टेक्ट हेलुसिनेट ज्यादा करेगा। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, फिर वहाँ पे एक रैग यूज करते हो इसमें कि आप नहीं? रैग ही है, बट रैग के बाद री-रैंकिंग आएगी कि मैंने उसका क्वेश्चन लिया, फिर जो चंक्स मिले थे चंक्स लिया, चंक्स को री-रैंक किया कि भाई कौन सा चंक ज्यादा रिलेवेंट है। तो वेक्टराइज कर दिया आपने डेटाबेस को एंड बेस्ड ऑन प्रायोरिटी उठा लिया। करेक्ट। एंड नॉट जस्ट प्रायोरिटी, सो सी वेक्टर डेटाबेस करने में काफी इजी लगता है, बट व्हेन यू एक्चुअली सी इट इट्स वेरी वेरी फ्लैंकी। यू आस्क इट समथिंग, इट विल गिव यू रिटर्न एनीवे, and it has the matching quality which is not very very good. So when you do a text search, exact search on your database, you get very good results, very high quality results, very reliable results. You done the same thing on vector database and you will get results which is very very wanky. कुछ भी दे देता है वो रिजल्ट में। उस 10 में से हो सकता है एक रिलेवेंट रहेगा, एक रिलेवेंट नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला दुकान का प्राइसिंग क्या है, तो प्राइसिंग उसको वर्ड तो मैंने 10 अलग अलग पेजेस पे मेंशन किया रहेगा, वो 10 पेज निकाल के दे देगा। मैं एलएलएम को 200 पेज दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि उतना कॉन्टेक्स्ट मेरा है नहीं। अगर मैंने लास्ट के 3 काट दिए और सिर्फ ऊपर के 3 दे दिए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मुझे वो देना है जो रिलेवेंट है उसके वर्ड के लिए, कस्टमर के लिए। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड री-रैंकिंग कि यू फर्स्ट डू ए रैग। रैग इज बेसिकली वेक्टर डेटाबेस, लाइक कि whenever you get all the documents, you vectorize it in a database. Then whenever customer asks something, you vectorize that question also. Then you do a question match करते हो। Based on the match, whatever chunks that you get, you check the chunks, you send it to GPT. GPT will figure out क्या आंसर करना है। But if the chunk itself you are sending to the GPT is not correct, then you will get the answer which is incorrect. And GPT कभी incorrect आंसर नहीं देता, वो बोलता है मैंने जो बोला वही सही है। तो कुछ तो बोल ही देगा जी। तो my job is to give GPT the answer that is relevant. उसके लिए क्या करूँगा, फिर मैं रैंक करूँगा बेस्ड ऑन, अच्छा ठीक है, एक अलग से मॉडल लिया, उस मॉडल को मैंने अपना क्वेश्चन दिया और चंक्स दिए। अब मुझे पता कि ये क्वेश्चन और ये 10 चंक्स में से सबसे रेलेवेंट चंक कौन सा लग रहा है, तो उसको सॉर्ट कर दे। वो सॉर्टिंग कर देगा। वो सॉर्टिंग करके जो टॉप के 3 मैंने लेके एलएलएम को दे दिया, नाउ द एलएलएम गिव्स मी आंसर व्हिच इज लॉट मोर कंफर्टेबल एंड एक्यूरेट देन डायरेक्टली मैंने दे दिया होता उसको। तो वहाँ पे करके उन्होंने मुझे आंसर दे दिया। अभी रैग में भी, रैग इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स। इफ यू सी यू हैव ए पीडीएफ, पीडीएफ हैव 300 पेजेस। एक चीज़ के बारे में आपने 3 अलग पेज मिल के रखा है, हाउ डू यू चंक द पेजेस इनटू, कैसे करोगे? 500 पेजेस का पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया, अगर आप पेज वाइज ब्रेक कर रहे हो एंड एक पेज में ट्यूटोरियल लिखा हुआ है या फिर किसी पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है, किसी डिवाइस के बारे में लिखा हुआ है, तो अगला पेज का कॉन्टेक्स्ट लूज हो जाएगा। सो इवन व्हेन चंकिंग द पीडीएफ, हाउ डू यू मेंटेन द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन मल्टीपल पेजेस? ये पेज का बाप कौन था, इसका बच्चा कौन है, इसमें जो पॉइंट्स मेंशन हुए हैं वो और कहाँ कहाँ पर मेंशन हुए हैं। सो व्हेन आई एम आस्किंग अबाउट लेट्स से डेथ बेनिफिट्स अगर 4 अलग पेजेस पे मेंशन थे, तो उस चारों पेज का कंबाइंड कॉन्टेक्स्ट जाना चाहिए एलएलएम को। देन ओनली एलएलएम कैन आंसर इन ए गुड वे। दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। देन सबसे पहले वो इसका पॉलिसी है कौन सा वो भी नहीं बताना मेरे को, तो मुझे पॉलिसी नंबर से पॉलिसी निकालनी है, उसका डॉक्यूमेंट कौन सा वो निकालनी है, फिर पॉलिसी का मेंबर कौन है वो निकालना है, उसके बेनिफिट्स किसके किसको है, उसको नॉमिनी है कि नहीं वो सब निकालना है। उसके लिए आप देन अगेन कॉल मेक ए कॉल टू द डेटाबेस व्हिच इज नॉट रैग, व्हिच विल बी योर फंक्शन कॉलिंग वाला पार्ट, उसका इन्फॉर्मेशन निकालो। उसकी एपीआईज जो होती है, अभी किसी के एपीआईज तो सब लोगों ने एपीआई अपने हिसाब से बना रखी है, तो इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्स आती है। दैट रिस्पॉन्स इटसेल्फ इज समटाइम 5000-6000 टोकन्स। यू टेक 5000 टोकन का रिस्पॉन्स एंड एलएलएम, कंपनी बंद हो जाएगी मेरी, बिक जाऊंगा मैं। लॉट ऑफ इंजीनियरिंग गोस थ्रू इट। रैग, उसके बाद वेक्टर डेटाबेस कनेक्टेड, वेक्टर डेटाबेस कनेक्टेड है बेसिकली, एंड देन एलएलएम्स एंड लॉट ऑफ इंजीनियरिंग दैट गोज इनटू इट, जो काफी लोगों को पता नहीं होता, वो सिर्फ रैपर समझते हैं, बट दिस इज द हार्ड वर्क। कोई दिक्कत नहीं है, रैपर ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूं बना लो, मैं बोल रहा हूं बना लो। जब मेरा डील सारा क्लोज हो जाएगा, इस जो पाइपलाइन में जो हो जाएगा, राइट, तो जितना तुम भैया साल में कमाते हो उतना मेरा एक दिन में धंधा रहेगा। मैं बोल रहा तू बना ले रहा है, कोई दिक्कत, तू रैपर ही है ना, बना, मैं बनाऊंगा रैपर, बना के खुश हूँ। तेरे को दिक्कत है लाइफ में? बिल्कुल, लोग तो हेट करते जाएंगे। इसी प्रॉम्प्ट इंजीनियर से क्या आप बता सकते हो कि यूएस की तरह क्या आप भी अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स एंड एआई इंजीनियर्स को ज्यादा पे करते हो एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? मैं अपने इंजीनियर्स को 25,000 रुपये सैलरी देता हूँ। कितने? 25,000 रुपये। रियली? 20 अभी तो जो मैंने बंदे हर के 20,000 रुपये देता हूँ। क्या बात है, लिटरली बंदे आके काम कर रहे खुद से, क्या दिक्कत है? वो यहाँ पे सीख के जाएंगे, 1 साल के बाद उनको जहाँ पे ज़्यादा पैसा जाएंगे लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराना पैसा था, जब एक जमाना था जब मैं अपने इंजीनियर्स को 30 लाख, सॉरी अपने इंटर्न्स को 1-1 लाख रुपये देता था, 2-2 लाख रुपये देता था सैलरी मंथ का, वो टाइम अभी चला गया। अभी ना मेरे पास पैसा है उतना, कंपनी में प्रॉफिटेबली चलानी है, सिंपल सा काम है, सस्ते में प्रोडक्ट बनाऊंगा। मैं इंटर्न्स हायर करता हूँ, काम करते हैं, बच्चे लोग हैं, अच्छे से काम करते हैं, उनको मैं जम के सिखाता हूँ, उनके साथ लिटरली बैठ के काम करता हूँ। आई गिव देम व्हाट दे वांट, whatever they will learn in college in 3 years, I make them learn in 3 months. At the same time, I get the work outcome from that. मेरी सैलरी लिटरली 20 से 25, एवरेज सैलरी देखोगे तो 20 से 25,000 रुपया है। आपकी भी? मतलब
कंपनी में मेरी सैलरी तो मैं तो कितना मेरा सैलरी 1.2 लाख कुछ तो है अभी मेरी कंपनी में. सो मैं भी कम ही, ऐसा नहीं है कि हमेशा से हमारी इतनी सैलरी, दोनों की सैलरी हम दोनों की इतनी है, 1.2 लाख समथिंग हम लोग लेते हैं सैलरी एनीवे. सो हमारे इंटर्न की सैलरी बहुत कम है. हर एक इंटर्न के पीछे हमने एक मेंटर छोड़ रखा है, जो मेंटर की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है बिकॉज जैसे एक्सपीरियंस का है. उसके अलावा वही है. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को सैलरी ज़्यादा मिलेगी ऐसा नहीं है, नहीं मिलेगी, मैं नहीं दे रहा. पर वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सीख लें अगर right now they are interns. When I hire a full-time prompt engineer which is very experienced, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं है. And prompt engineer is not just salary. If you can write good prompts, you can build products yourself. आजकल लोग काफ़ी खुद से प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड बना के खुद ही बेच सकते हो. इजीली यू कैन मेक 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपीज अ मंथ इजीली बना सकते हो खुद का प्रोडक्ट बना के. मैं जस्ट रीचिंग आउट टू कस्टमर्स एंड सॉल्विंग वन स्मॉल यूज केस. आपको पूरी दुनिया के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आप देखो आपके बिजनेस, आपके पापा का बिजनेस रहेगा, आपके पापा कहीं पे काम करते रहेंगे, वहाँ पे इतने सारे टास्क मैनुअली करते रहेंगे लोग, आपका दिमाग खराब हो जाएगा. उसके लिए कुछ तो बना के दे दो, यूआई बना के दे दो, डैशबोर्ड बना के दे दो, कुछ तो बना के दे दो. 50 रुपये मांग लो पर मंथ, दे देगा, आराम से दे देगा जी. ऐसे 4 कंपनी और रहेगी, उनको जाकर बेच दो, हो गया, डन. डोंट वरी. ये मत सोचो प्रोडक्ट घर पे जाकर लॉन्च कर दूंगा चल जाएगा, नहीं चलने वाला. लुक अराउंड योरसेल्फ. किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, देखो इंस्टीट्यूट की क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ तो बना के दे दो. स्कूल है, कॉलेज है, आपका ऑफिस ही है, उसी में पूछ लो सर आप सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्चा करते हो, कैन आई पुट इट, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्चा करते हो, कुछ बना के दे दो, वही पैसा दे देंगे जी. तो डैट वे ऐसा तो मैं नहीं दे रहा, बट आई नो कि पीपल विल पे लॉट मोर मनी टू. अभी मेरा काम है कम पैसे में प्रोडक्ट बनाना, तो वही करूँगा. बट भगवान पैसा देंगे, फंडिंग आएगी, वापस से यूनिकॉर्न बन जाऊँगा, मैं फिर दूंगा करोड़ों में, कोई दिक्कत नहीं. अभी बस यूनिकॉर्न बनने के लिए जो चाहिए वो कैसे कम पैसे निकालना पड़ेगा. ये एक्सेप्शनल है. इंडिया में ये स्किल्स काफी अच्छी है. आप देखो यूपीआई को देख लो, 3 सेकंड में उबर ड्राइवर मुझे कंफर्म कर देता है कि पैसे आ गए 3 सेकंड से कम में. मैं यूएस में ट्रांसफर करता हूँ 10 सेकंड से ज़्यादा लगते हैं दूसरे को टेक्स्ट मैसेज आने में कि मैंने जेल पे या फिर वेनमो पे हमने पैसे दिया. और जिस कॉस्ट पे हम कर पाते हैं इट्स एक्सेप्शनल. कंपीट नहीं कर सकता टेक्नोलॉजी में, एंड वी आर द बेस्ट इन इट. बैंगलोर में 10 to 15% एआई जॉब्स क्रिएट हुई हैं. यूएस में 40% से ज़्यादा सिलिकॉन वैली में दे आर इन एआई, एंड देयर इज मोर डिमांड लेस सप्लाई. इस कारण दे आर एबल टू पे देम मोर. अभी नेक्स्ट टाइम जब ये धीरे धीरे ट्रेंड आएगा in Silicon Valley of India, शायद यही prompt engineers will be making the highest amount of money with these skills. Absolutely. अच्छा सी अभी तो रिसेंटली हायर किए हैं, ये लोग अच्छा करेंगे तो कोई बना के दूंगा. फर्स्ट ईयर में लेट्स से जिनको मैं दे रहा हूँ पैसा, फर्स्ट ईयर वाले बंदे हैं जी. फर्स्ट ईयर में if someone is making 20,000 a month, आपने बनाया था क्या? आम कोई इंडियन स्टूडेंट इतना बना ही नहीं सकता. 6 महीने काम कर लिया, उसको अगर लेट्स से कंफर्म कर लिया तो वही 20,000 1 लाख मिलने वाला है. फुल टाइम में 6 महीने में फुल टाइम बन गया तो 20,000 1 लाख मिलने वाला है जी. सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज 1 लाख रुपीज सैलरी. थर्ड ईयर में जाते जाते दे विल बी एट अ पोजीशन जहाँ पे दे कैन इजीली कम्पीट विथ वेरी व्हाट आई विल कॉल कि सोफिस्टिकेटेड एक्सपीरियंस इंजीनियर्स. इवन अभी जो बच्चे हैं एंड उनको जो मैं देख रहा हूँ, दे आर ऑलरेडी वेरी बेटर देन मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस पीपल आई वर्क विथ. सो अगर ऐसे बच्चे अच्छे करके जाग रहे हैं एंड 2-3 साल में वो लोग दे आर एट ए सिमिलर लेवल जहाँ पे 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे काम कर रहे हैं, तो दे विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. आई एम डैम श्योर दे विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. अभी इनको ज्यादा दे दोगे तो वो भी सही नहीं है. जो क्यूरियोसिटी है इनमें इट्स एक्सेप्शनल. अभी हम बात करते हैं कुछ इंजीनियर से, इट विल बी अमेजिंग. एंड उससे पहले बात करने से पहले लास्ट क्वेश्चन, आप बता सकते हो कि आप कैसे स्केल करते हो विद जस्ट बेयर मेटल. आपने कॉस्ट तो बता दिया, आपने 60x सेव करे हो, $90,000 ऑन क्लाउड वर्सेस 1,500 मंथ. सो लेट्स से आपने जो बेयर मेटल अपने कमरे में रखा है, यहाँ पे बेयर मेटल का एक जगह पे है कि बेयर मेटल को भी आपने अलग अलग कंट्रीज में रखा है? सी हमारे कंपनी में राइट एंड इन मोस्ट कंपनीज राइट देयर आर 2 काइंड ऑफ वर्कलोड्स. वन इज ऑलवेज फिक्स्ड, वन इज some way variable. When I say always fixed, right? What are the variables that is always going to be fixed? My number of stores that is on the platform, that is always going to be fixed. ऐसा अचानक से एक दिन उठ के 1 लाख नए स्टोर्स नहीं बनने वाले. Until I go and do a large scale advertising on Super Bowl, या फिर मैंने IPL खरीद लिया, वो अलग चीज़ है. बट मुझे पता है कि मेरी कंपनी में नंबर ऑफ स्टोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दिन में नहीं बढ़ जाएंगे जी. अभी लेट्स से आज XYZ स्टोर्स हैं तो कल 10% बढ़ जाएगा, 15% बढ़ जाएगा 1 महीने में, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला. 3 साल का डेटा मुझे पता है जी. वो वर्कलोड फिक्स्ड है. वहाँ पे इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट इन ए सॉल्यूशन जहाँ पे मुझे उसका फिक्स्ड कॉस्ट पता है. तो वहाँ पे आई पे नेगोशिएट डर्ट हार्ड ऑन कि भाई मुझे इतनी सर्वर्स चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए, कितने में देगा पर मंथ बता मेरे को, बिकॉज मुझे पता है मेरा स्किल उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है. तो वहाँ पे आई गेट डर्ट चीप रेट टू गेट द सर्विस. एंड 5-6 सर्वर्स लेट्स से अगर ले लोगे, जैसे 1 सर्वर विल हैव व्हाट 72 CPU कोर्स, 256 GB रैम, 256 GB रैम, 72 CPU कोर्स, बहुत ज़्यादा पावर होता है.
5 of those servers runs my entire backend for all the store management. That is number of handling stores का dashboard, orders, products, catalog management, every single thing. Just 5 servers से मेरा around 32 से 33 सर्विसेज चलती हैं, databases चलते हैं, सब कुछ 5 सर्वर्स के ऊपर हमने एक क्लस्टर बना रखा है कुबरनेटिस का, उस पर सब कुछ चल जाता है. The per server cost is $149 per month. $149 per month per server. 5 सर्वर $700 पर मंथ मेरा बैकएंड पूरा चल जाता है, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं मेरे को करने की. अब वो 2 साल से चला आ रहा है, डेटाबेस चलता है, सब कुछ चलता है, स्मूथली चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. देन सेकंड वर्कलोड इज द वर्कलोड दैट इज डायनामिक इन नेचर. मैंने से डायनामिक दैट इज कि एक स्टोर पे एक दिन में कितना कस्टमर आएगा वो मुझे नहीं पता होता है, बिकॉज वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. जी. जो मेरा कस्टमर है उसने कल को जाके हिंदुस्तान में ऐड रन कर दिया, पूरे इंडिया में ऐड रन कर दिया, वो मेरे से पूछ के करेगा क्या? नहीं, वो कर लेगा. दैट आई डोंट नो. ये जो वर्कलोड है ये मेरा कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, मुझे नहीं पता. जो शार्क टैंक पर लोग आते हैं वो क्या करते हैं, आके चले जाते हैं. तो माई इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ड इन ए वे जहाँ पे जो मेरा फिक्स्ड वाला वर्कर्स हैं, फिक्स वर्कलोड्स हैं, वो ऐसे bare metal सर्वर्स पे हैं जो काफ़ी चीप है बट फिक्स्ड है. वहाँ पे मैं स्केल अगर मुझे मिनट में करना रहेगा मैं नहीं कर सकता. बाकी जो मेरे वेरिएबल वाला वर्कलोड है दैट आर ऑन द प्रोवाइडर्स दैट आई कैन स्पिन अप ए न्यू सर्वर इन 10 minutes इफ आई वांट टू. वहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, लाइक आई सेड, आई हैव सर्वर्स इन 22 डिफरेंट रीजन्स. हर एक रीजन में छोटा छोटा सर्विस ले रखा है. एक सर्वर का कॉस्ट मेरा $50 पर मंथ आता रहेगा, हार्डली नॉट मोर देन दैट. सम रीजन्स में रात को बंद भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो एक रीजन में मैंने एक सर्वर डाल दिया. उस सर्वर एक वन bare metal सर्वर टुडे कैन हैंडल लॉट ऑफ ट्रैफिक. एक सर्वर का कैपेसिटी आप देखोगे ना तो आज के डेट में उसको कुछ नहीं करना है, एक ई-कॉमर्स का पेज रेंडर करना है. कितना डिफिकल्ट है वो. एक डिजिटल ड्रॉपलेट 512 MB रैम पे हम लोगों ने दुकान का पहला 3 महीना चलाया था. 512 MB रैम डिजिटल ड्रॉपलेट, डेटाबेस भी उसी पे है, सर्वर भी उसी पे है, जेंगो भी उसी पे, सब कुछ उसी पे चल रहा था. आज के डेट में सर्वर्स आर लॉट पावरफुल देन दे वर 10 years बैक. तो एक तो चल जाता है. लेट्स से इतना ट्रैफिक बढ़ गया जहाँ पे स्केल होना है, मुझे पता है मैं कितना भी कुछ कर लूँ, मैं क्लाउड स्केल नहीं कर सकता, bare metal कहाँ से स्केल करूँ. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रीडाउट द ट्रैफिक टू ए डिफरेंट लोकेशन नियर बाय. मुंबई का दिल्ली कर दिया, बेंगलोर कर दिया, पूरे इंडिया में ट्रैफिक बढ़ गई तो हर जगह पे थोड़ा ऑब्जर्व हो गया. तो एवरी लोकेशन इज नॉट हैंडलिंग ओनली, लेट्स से बेंगलोर का जो सर्वर है इट ओनली हैड टू हैंडल बेंगलोर का रीजन. कितना ही लोग आ जाएंगे उससे. वन सर्वर कैन हैंडल, पकड़ लो, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रिक्वेस्ट इन ए सेकंड. 30,000 रिक्वेस्ट इन ए सेकंड इज ए बिलियन पीपल इन अ डे. नहीं आ रहे मेरे स्टोर पे यार इतने लोग. 1 बिलियन लोग मेरे स्टोर पे क्या करने आएंगे बताओ? एक स्टोर पे क्या ही करने आएंगे? नहीं आ रहे जी. तो वहाँ पे यू डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग एंड इट वर्क्स फाइन. लेट्स से व्हाटएवर रीजन इंडिया का कैपेसिटी आपका भर गया बहुत ज़्यादा, यू रीराउट इट टू सिंगापुर. आई थिंक इंडिया टू सिंगापुर इज अराउंड 80 मिलीसेकंड एक्स्ट्रा लेटेंसी. 80 मिलीसेकंड एक्स्ट्रा ऐड ही हो गया. 80 मिलीसेकंड यू वॉन्ट इवन नोटिस. इज दैट्स व्हाट यू वॉन्ट इवन नोटिस कि यार क्या हो गया. आधे कंपनी का वेबसाइट तो ऐसे ही 2 सेकंड लोड होता है. मेरा तो फिर भी मैं मिलीसेकंड की बात कर रहा हूँ. सिंगापुर में भर गया तो यूरोप चला जाऊँगा, US चला जाऊँगा. फॉर द टाइम माई सर्वर्स आर नॉट स्केल्ड. 10 मिनट रहा, पूरा ग्लोबली चल रहा था, तब तो मुझे पता है कि मेरा बेंगलोर में या फिर मुंबई में स्केल या इंडिया में स्केल करना है. एक सर्वर नया स्पिन अप कर दिया, 10 मिनट लगता है स्पिन अप, नया bare metal सर्वर स्पिन अप करने के लिए 10 मिनट लगता है. वी आर नॉट लिविंग इन एक एरा जहाँ पे एक सर्वर लेना इज लाइक किसी को मेल करो, वो बंदा जाकर हार्डवेयर खरीद के लाएगा, स्पिन अप करेगा. देयर आर प्रोवाइडर्स दैट विल लेट यू स्पिन अप क्लाउड bare metal सर्वर्स इन लिटरली 10 minutes. यू सेंड a request, the server will spin up, your software is already installed, it will join your cluster and the traffic will start to go there automatically without you doing anything. So that works. So you go from there, you go there, you spin up the servers, server start हो गया, ट्रैफिक अपने आप यहाँ पे चला जाएगा. आधे घंटे का खेल होता है, कोई भी ट्रैफिक स्केल आधे घंटे का खेल होता है. आधे घंटे में सब कुछ खत्म होगा, हमको पता भी नहीं चलता क्या हुआ. एवरीथिंग इज डन देयर. विद दिस आर्किटेक्चर, नो मैटर हाउ मच ट्रैफिक इट कम्स, वी आर लाइक सॉर्टेड. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. Got it. तो आपके इस विजन से आपको क्या लगता है कितनी देर में आप यूनिकॉर्न बन सकते हो विदाउट रेजिंग फंड? 100 मिलियन कंपनी से आप क्या रेज, आपका व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? विद फंड रेज आप यूनिकॉर्न बनोगे या विदाउट? So when we started the company, right, being a unicorn was one of the aspirations. Even our Wi-Fi password was the next unicorn. But then we decided, yaar, this journey, right, maybe not so. अभी उसमें जाने का इच्छा उतना ज़्यादा नहीं होता है. So now the objective is to build a company जहाँ पे we make lot of money, we make profits and we build a sustainable company जहाँ पे जो सब चीज़ें लास्ट टाइम हमको करना पड़ा था वो सब ना करना पड़े. Whatever we went through last year, right, was very painful for us as a founders, मेरे लिए, सुमित के लिए, and for the people who are involved. It was very painful. You hire a lot of people at the same time for growth, then you have to let them off. All those things were not something I want to repeat again. तो अभी जब करना भी है तो इवन से स्लो जर्नी 10 साल के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं. कौन सा मैं भागे जा रहा हूँ, कौन सा बड़े जा रहा हूँ, 30 साल का लौंडा हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? जी. आई विल डू इट स्लो.
and unicorn or not, I don't know, but we will build a sustainable and large scale company for sure, which is helping pretty much every enterprise, not just in India, but US as well, in making their processes more efficient with AI. As AI है तो AI हमारा at the end of the day, this was the goal that we started the company, right? Earlier e-commerce was the thing. Now AI is the thing. कल को कुछ और आ जाएगा तो वो भी कर लेंगे. क्या बात? Not fixed on कि यही करना है. कल को कुछ और आ जाएगा, देखेंगे अपॉर्चुनिटी है, मार्केट है, people लोगों को वही चाहिए. लोगों को सबको आज आइसक्रीम ही खाना है, मैं जाके वहाँ पे रसमलाई बेच रहा हूँ तो लोग खाएंगे क्या? नहीं. क्या कर सकता हूँ? एट द एंड ऑफ द डे मैं अपनी मंजिल से नहीं बनाऊंगा ना, जो लोगों को चाहिए वही बना के दे रहा हूँ, ठीक है चल रहा है तो अच्छी बात है. वट वी नो कि वी स्पॉट अपॉर्चुनिटीज वेरी अर्ली, एंड दैट इज द आई वुड कॉल इट ए virtual or whatever you call it. In e-commerce we were the first to start. Even in India we were one of the first at least in the country to start to कि भाई AI में कुछ तो करना है जी. So early mover का advantage होता है. Even in e-commerce we got a lot of traction just because we were very early to start and we did a really good job at doing it. In AI also we are some of the first to start. We know the industry, we know the tech really well, and we are doing a good job. मेहनत कर रहे हैं अच्छे से तो we are able to win. या आपका विजन है फर्स्ट कस्टमर्स, एंड इफ कस्टमर्स आर हैप्पी, यूनिकॉर्न कभी भी बने क्या फर्क पड़ता है. ग्रोथ इज प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस एज कंपेयर टू इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, राइट? इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन वाला गेम अभी मतलब आई डोंट लाइक दैट एनीमोर. मतलब स्टार्टअप हमने किया था तो हमारा भी वही था, बट आई डोंट लाइक दैट एनीमोर. मतलब द काइंड ऑफ पेन वी वेंट थ्रू, राइट, द काइंड ऑफ प्रोसेसेस, द काइंड ऑफ एवरीथिंग दैट वी वेंट थ्रू, वापस नहीं करना चाहता वो. मतलब कोई आके कल को मुझे बोल दे कि ये रहा $1 मिलियन का चेक, तो आई वोंट से नो टू इट. ऑफ कोर्स मतलब बोल देगा भाई कल से तो यूनिकॉर्न है तो आई डोंट से नो टू इट. ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है जी जी. बट am I chasing that actively? The answer is no. जी. What I'm chasing right now is speaking to customers. Yesterday I was in office of customers. दिन के 3 मीटिंग थे उनके ऑफिस में जाके, जहाँ से भी हो सकता है, to understand the use case कि भाई क्या बनाना चाह रहे हो, कैसे बनाना चाह रहे हो, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ. That is the use case. So that is where the more focus is now on those things versus last year that was the different things. So yeah, I hope कि आप AI revolution of India continue करते जाओ, take it forward to all over India, all over the world, not just AI, or not just India and US. Thank you so much, Subhash, for giving so much time and learned a lot from you. Thank you so much.